Hey, you, welcome to another episode of Real Talk. This is my podcast where I keep it very, very real with every guest of mine, as you know. And I'm very excited and stoked about this particular episode because finally मुझे मौका मिला to execute it in the format that I always wanted to execute this podcast in. And of course, I started it during COVID, तो तब तो कोई chance ही नहीं था. But even then, I was geographically challenged. I used to live outside India, and there was no way to really have any recordings like this. But I decided that now that I'm here and I can try and make this happen, I will do it in this format as much as possible for the podcast. So this is the first one. Hopefully, there'll be many more. If you follow me on Instagram, you know that I love to walk. I walk every day. And I think some of the best conversations happen when you're walking with someone because I don't know, because why? We're just more relaxed, we're just more real. So guards are not as up as they are when you're probably sitting in a studio face to face with a mic in front of you. And that's why I just like to have this more authentic and real way of talking to someone. So big shout out to Youngster for coming through. Not only did he come through, but he came through when he doesn't have a release coming up. And usually artists agree to doing interviews when it's timed with a release. So I really appreciate Youngie for coming through when I got in touch with him. And he said, if you're cool, I'm cool. And I was like, yeah, I'm cool, because that takes away an agenda, for the episode. And I can just focus on having a free flowing conversation with you, which is the whole point of it, to get to know the human behind the art and the artist. And big shout out to him for picking the location that he did, because यहीं पे डियर पार्क हौस खास विलेज, यहीं पे बहुत ही चीजों की शुरुआत हुई है, राइट? सीन में the rap battles, the ciphers, all of that. Even today, a lot of it goes on, and Youngie was a part of that scene from the start, with all the OGs. So he's sharing a lot of stories and little anecdotes with us as we walk around. And it was just one of the best episodes I've recorded. I'm so grateful to him for coming through. And I really, really hope you enjoy this format. My only brief to my partner in crime, Aditya, shout out, who was behind the camera, was that it doesn't matter, how far or close you are to us, or whether, the camera is a little shaky, or whether you're behind us or in front of us. It doesn't matter. Just record this in a natural way, like there's a camera around two people who are walking and talking. That's it. So I really hope you enjoy this format. I would love to have your feedback on it. Please do comment below and tell me if you liked it. I will try my best to do every episode of Real Talk in this manner, because I just feel it's as real and authentic as it can get. So let me know your thoughts. I hope you enjoy the episode. And once again, thank you so much, Youngie, for coming through on this one. And without further ado, let's just get into the conversation. This is Real Talk featuring Youngster. Let's go. Hello, Youngie's here. How do we do this? कैसे हो आप? I'm good. Good to see you. Good to see you. How has Delhi been? Delhi is good. I'm getting used to the AQI and the winter. Yeah, all of us are getting used to the AQI. Winter तो चलो ठीक है, होता रहता है, वो तो आदत पड़ गई है अब. मुझे नहीं है अभी, but I'm so happy you're here. Yeah, and you're doing this. Glad, yeah. Welcome to Real Talk. Yeah, glad to be on the first episode of The Real walk. Talk. Yeah, The walk and talk, Real Talk. Yeah. You said we should meet here because Yeah. यहाँ पे हिस्ट्री है सीन की थोड़ी, है ना? या आई मीन हिस्ट्री है, अभी भी चलता ही रहता है यहीं पे सीन. मतलब उधर वो परगोला जैसा है, उधर भी अपन जैम लाइक साइफर्स वगैरह करते थे. उधर अभी पता नहीं काफी ऐसा चेंज हो गया है, लेकिन हाँ मतलब इधर भी देयर इज अ परगोला, उधर भी जैम करते थे, साइफर्स करते थे नियर द लेक. वहाँ पे बी बॉयज यूज्ड टू, अभी भी करते ही होंगे. लाइक शाम को अगर आप ऐसा 4-5 बजे करीब आओगे तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ बी बॉयज just jamming, ciphering, rappers ciphering there and stuff like that. Maybe we'll catch some. अभी तो. Yeah, अभी तो. हो सकता है. Yeah. I mean, वो उनके मूड पे डिपेंड करता है. बाकी we'll walk, I'll like try to spot some places जहाँ पे हम लोग वीडियो वगैरह शूट करते थे पहले, मतलब साइफर वीडियोस UML के टाइम. And how long ago was this? Like 2015, 16ish. Yeah, I mean. उस वक्त स्पिट डोप, काफी हिस्ट्री. या उस वक्त स्पिट डोप बन रहा था. Okay. और मतलब स्टार्ट हुआ था एंड डियर पार्क से ही स्टार्ट हुआ था. और स्पिट डोप मतलब ये अभिजय, सिद्धांत, कोड और भी लोग, एब्जॉम, स्नब, ये लोग इधर ही मतलब
बैटल्स करते थे, वीडियोस डालते थे उस वक्त. And then like you joined them when they were already sort of the scene was. No, I mean it's somewhat मतलब I have been there in the background for Spit Dope. Yeah. In the sense कि we should go from here. Yeah. In the sense कि while UML was going on. Oh. उस वक्त Code, like that's when I met Code. Okay. During a battle like tournament that was going on in Saket. So that's when I first met Code. And uske baad it's been like okay, I was doing my college, I was in my second year and I barely evaded a like KT. तो मैं थोड़ा सा फोकस हो गया था कि चलो कुछ टाइम पढ़ाई करते हैं और मैं गुड़गांव भी था. एंड लाइक उस वक्त QML खत्म इन द सेंस कि लाइक पीपल हु वर ऑर्गेनाइजिंग UML वर काइंड ऑफ गोइंग देयर ओन वेज इन देयर ओन लाइफ, यू नो. तो एक बहुत बड़ा वो हो गया कि अच्छा अभी UML वगैरह कराते थे, साइफर्स वगैरह एंड ऑल दैट शिट, तो अभी कैसे करना है. तो वी वर हैविंग अ कन्वर्सेशन लाइक ऐसा कोड के साथ कि क्या कर सकते हैं. एंड आई वाज लाइक कि भाई हम ही लोग को करना है, तुम लोग को ही करना है. अगर तुम लोग लाइक बिकॉज आई वॉज इन UML लाइक आई काइंड ऑफ वॉज बिकमिंग दैट पर्सन कि ओके अब ये लोग जा रहे हैं तो यंगी हैज बिन देयर, तो यंगी से ही पूछते हैं कि क्या कर सकते हैं बिकॉज वो भी कर रहा है काफी टाइम से. तो आई लाइक कि भाई मेरे को खुद आधी चीजें नहीं पता, मैं तो खुद दिल्ली का नहीं हूँ, मतलब वो बहुत परफेक्ट नई चीज है मतलब या. तो मतलब उस वक्त मेरे को क्या 3 साल हुए थे दिल्ली में, 4 साल टाइप, 3 साल 4 साल. तो आई वाज लाइक कि भाई करो जो जिसको जो करना है करो, लाइक डियर पार्क में ही करते हैं तो यही करो. एंड देन दीज गाइज स्टार्टेड ऑफ पुटिंग आउट वीडियोस, पुटिंग आउट कंटेंट लाइक बैटल कंटेंट एंड अदर स्टफ. मतलब साइफर्स वाइफर्स भी करते थे ये लोग, कभी किसी के बेसमेंट में कहीं. तो आई हैड बीन सीइंग. और फिर बीच में जब मेरा थोड़ा स्टेबल हो गया, इन लोगों ने पहला गिग कह लो या एक इवेंट कह लो, दैट हैपेंड in Kunzum Cafe here only in Housecast only. Okay. That's the first Spit Dope that I attended. Like वो भी battle ही थी, battles and ciphers. उसकी videos भी हैं अभी online. Yeah. So 15-16 it was. That was 15-16 yeah. Okay. Yeah. That's the first Spit Dope I attended. I was never like in this Deer Park battling वाला time, which was like 5-6 months. But उसके बाद हाँ मतलब and that's when Code kind of asked me also कि भाई क्या कहते हैं अभी हम लोग कर रहे हैं ऐसा यहाँ पे शोज वगैरह फिगर आउट करने की कोशिश भी कर रहे हैं रास्ता रास्ता में. तो व्हाट एल्स कैन वी डू, वो साइफर्स वाला काइंड ऑफ मेरा आइडिया था. मैंने कोड को उस वक्त लाइक मेरा आइडिया क्या था, मतलब इट वाज जस्ट अ कन्वर्सेशन. मैंने बस कोड को ऐसे फिटिंगली बोला था कि बैटल्स करो, फिर साइफर्स करके उसको वी कैन लाइक यू नो टीम बैक टाइप शिट भी कर सकते हैं. वी कैन बी द पीपल यू नो एज इन नॉट लाइक एज इन Spit Dope the umbrella which is has hip all of hop it for in Delhi. it. Yeah, got it. It's hip hop, synonymous to hip hop basically. Good, nice. And then that started. The cyphers started. The ciphers and like भाई तो ये हाँ मतलब भी no तो वो ciphers वगैरह तो हम लोग फिर अंदर करने लगे इंडोर्स, लाइक कोई कैफे में. देन इवेंचुअली वो रास्ता वगैरह में होने लगा. वर्कशॉप्स वगैरह होते थे उस वक्त. लाइक वर्कशॉप्स एक आई रिमेंबर रागा को बुलाया था वर्कशॉप करने के लिए कुछ, तो बहुत क्रेजी था वो भी, बहुत लोग आ रखे थे उसमें. तो या दिस इज द परगोला आई वाज टॉकिंग अबाउट. यहाँ पे बहुत सीन चलते रहते हैं. लाइक यहाँ पे डांसर्स आते हैं ना, कल राज बता रहा था मुझे. या ओके. आई मीन आई थिंक देयर इज अ कपल ऑफ Nice. Yeah, there are a couple of dancers here. Yeah, I'm sure they're jamming. मस्त है, इधर चलता रहता है कुछ ना कुछ. We'll go here. Yeah, we I can like go it. from. Yeah, we can go from here. You did not visit this yesterday. I did. We walked here, but ज़्यादा नहीं. We just went that way. Okay, सही. But so you've been in the scene for so long now. Yeah. And then, of course, you had Full Power and all of that happening with Frappe. Yeah. Then, and I was watching some of your interviews. You were talking about how you want your first album to be like the, you know, because a lot of rappers, their first album is their best album. Yeah. And you were kind of approaching it from that energy as well. Yeah. So, how would you say life is before Meen and after Meen? How has it changed artistically also and just overall you? Yeah, I mean, a person. Yeah, Meen helped me find out. Basically, if जैसे articulate करना मेरे को वो मैं figure out कर रहा हूँ कि उस वक्त तक 2023 तक जो भी मैं था, हाँ, वो उधर खत्म हो गया, like उधर encapsulate हो गया. Okay. उसके बाद
उसके जो लिमरेंस थे थोड़े बहुत कि ओ मैंने कुछ साउंड्स जो ट्रैप जो मेरा बैंगर वाला जो एक मोड है वो नहीं करा, तो वो मैंने ग्रेवयार्ड शिफ्ट में भी कर दिया। लाइक द एक्सटेंशन इट कुड हैव बीन अ मीन डीलक्स बट आई वाज लाइक नो, मीन होना ही था पे खत्म हो चुकी है, लाइक डीलक्स नहीं डालना मेरे को, लेट्स लाइक मेक एन ईपी। तो दैट वाज काइंड ऑफ देयर। तो भाई ये वो उधर आके एनकैप्सुलेट हो गया। फिर मेरे को काफ़ी टाइम लाइक भाई मैं अभी तक उसके बाद अभी लाइक आफ्टर दैट एल्बम आई एम काइंड ऑफ फिगरिंग इट आउट कि कैसे और कहाँ जा सकता हूँ मैं। तो इसलिए थोड़ा टाइम भी लग रहा है। या आई मीन वही है कि वहाँ से एज एन आर्टिस्ट अगर आपने पूछा तो एज एन आर्टिस्ट काफ़ी चीज़ें वहाँ से शुरू हुई हैं कि ओ मेरे को मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं गा भी सकता हूँ। अगर मैं सवेरा पे गा रहा हूँ तो मैं इसको और कैसे कर सकता हूँ, लाइक किन साउंड्स में। तो लाइक सवेरा फॉर एग्जांपल वो वैसा और मतलब उस साउंड को और खोलना है मेरे को। सो आई हैव अ प्रोजेक्ट राइट नाउ व्हिच इज 60% देयर, व्हिच इज अ न्यू सोल डांस प्रोजेक्ट। लाइक मतलब उसमें मैं रैप कर रहा हूँ, उसमें मैं गा भी रहा हूँ, बट लाइक वो भी चल रहा है उस पे काम। बट न्यू सोल डांस प्रोजेक्ट, या आई मीन इट्स ग्रूवी। ओके नाइस, आई कैन इमेजिन दैट। सो वो सब है उसमें, काफ़ी मतलब अभी चल ही रहा था काम। लेकिन उसके पहले अब that project artistically has also given me a lot of confidence about like the shit that I want to say, putting more emphasis like कि और किस चीज़ पे मेरे को emphasis डालना है, like what parts of me do I want people to really connect remember like what's कि वो होता है ना कि लोगों को काम के लिए याद रखते हैं बट कोट कैसे करते हैं, like what have like legacy aspects, yeah, so वो है कि भाई वो मेरी स्टोरी को बहुत मतलब ऐसा when it's all said and done वो parts of my story will make the entire existence of my music worthwhile and give it meaning and like you know for emotions basically कि वो मेरे म्यूजिक में जो इमोशंस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, वो उन चीज़ों को जाने सेट इन स्टोन हो। तो वो चीज़ें मेरे को समझ में आई है मीन से कि अच्छा ठीक है ये चीज़ें हैं जो मेरे को मैं बनाती हैं मोस्ट पार्ट। Okay. In Mean, you told quite the story. Like your whole, it kind of was like this project defines Youngie because it tells us who he is, where he's from, kya hai thoughts, kya hai values. As a storyteller, do you think that was easy to do? Because I remember the clip from Faizan also that played in the album, and then you also told a lot of stories when you did collab projects like Karam and you know features. So is it easier to tell your own story or tell some other imaginative story? Imaginative story is easier, है ना? Yeah, because it's अब जैसे खोया सब मेरे को बोल दिया गया था कि क्या करना है, so you have a set, you know. But you're so good at that also. Canvas. Thank you so much for saying that because that is something that I was very, you know, वैसा बहुत कम हुआ है कि मैं even with Sez or whatever if I'm like making music with Sez जो भी है मेरे पास टाइम होता है जो कि मैं जाके और जब मैं अपने गाने बना रहा होता हूँ तो फिर तो कोई वही नहीं है, मतलब मैं डेडलाइंस पे काम ही नहीं करता। मैं उस पे काम करता हूँ कि भाई जैसे है, हाँ डेडलाइंस पे काम करता हूँ अगर कुछ मतलब वैसा कमर्शियल प्रोजेक्ट हो, लेकिन अपने गानों के लिए तो वो है कि भाई आने दो उसको, लाइक लेट इट कम, डोंट फोर्स इट, आने दो, आई लाइक इट। तो बट खोया सब के वक्त लाइक ओके कश्मीर के साथ सेशन है, I'm like half an hour late. He is 15 minutes late further than that. Okay. And he comes. I'm like, okay. I start speaking to him in Hindi, like he knows Hindi, and Ayushman is like he doesn't know Hindi. I'm like, आधे घंटे से मैं हिंदी में क्यों बात कर रहा हूँ? But then Niles was like, nah bro, I understand. I get the gist of whatever. So I was like, cool. And but it's so sweet. He didn't interrupt you. आधे घंटे से सुनते जा रहे थे. Exactly. भाई तो मेरे को लग रहा है कि बस he is understanding or whatever. But good on their part because Ayushman had given me a brief of what the entire storyline is and where do I need to fit in. Although when I went there, Kashmir Board like gave me a few more options to do other stuff. But मैं कहीं ना कहीं दिमाग में क्योंकि आयुष्मान ने वो पहले ही बोल रखा था तो मैं रेडी गया था कि ओके ऐसा ही कुछ करना है मेरे को. And then फिर he played us like the music, the beat, and I was like cool. So वही है कि वो स्टोरी मेरे को पता है क्या बोलना है और फिर उसको ब्रेक डाउन करके वो मैंने फिगर आउट कर लिया कि अच्छा ठीक है फर्स्ट हाफ ये सेकंड हाफ ये हुक का मोटा मोटी इमोशन क्या है. So I knocked off the verse and the hook, first verse and the hook there in the studio. Second verse like 45 minutes, 45-50 minutes. Oh damn. Yeah. Damn son. Yeah, I did that.
बस लाइक कूल हो गया, हुक हो गया, वर्स हो गया. सेकंड वर्स ही टोल्ड मी कि परसों कर लेना, लाइक एक दिन बाद, अगले दिन किसी का सेशन था, लाइक कि जा घर सेकंड वर्स लिख के अपना परसों आके कर लेना. ही माइट नॉट बी देयर, कश्मीर हैड टू फ्लाई आउट बिफोर दैट, बट लाइक यू विल डू इट. आई लाइक yeah, I'll do it. And then I come outside to the like बेयाउल में उधर एक लाइक उनका बूथ है, and then you enter from here. This is the main like studio space. जहाँ पे मॉनिटर्स लगे हैं. Okay. तो I enter and I don't see कि और कौन है. And then I'm like, okay, सुन लिया, हो गया, मस्त है, okay, bye bye. And then I turn and like Lisa is there. And I'm like, oh yeah, hi, big fan. जो भी है, like she's also like, yeah, I heard what you like, it is nice. While I'm going back, Kashmir is like, yo, do you want, like, do you fuck with the idea of Lisa on the track? Hopping on, yeah. I'm like, bro, please करवा लो, studio में है, उसको जाने मत दो. Great idea. So yeah, I mean that's how she came into that song, and वो end में उन्होंने. So good. Yeah. So good. Okay. You guys were so good. Shout out Lisa Mishra. Shout out. That song was the standout song on the album. Yeah. I'm glad you say that. So it's easier than to tell a story. इसका brief दिया हुआ. Yeah. A lot of people are like, मेरी story बताना आसान है मेरे लिए. यार अपनी story बताने में ना, मतलब अभी I'm at this point. देखो, कहने को एक इंसान के पास एक सर्टेन सेट ऑफ चीजें ही होती हैं, और मैं अभी इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस कर चुका हूँ. मैंने अपने फेयर शेयर ऑफ थिंग्स आई एक्सपीरियंस्ड, बट मैं जैसे बड़ा हो रहा हूँ, मैं अलग अलग इमोशंस को ही लाइक लोग छोड़ के चले गए इज वन इमोशन, ठीक है. अब वो तुम्हारी लाइफ में इतनी बार होगा, इतने अलग अलग तरीके से होगा कि तुम बोलोगे वही चीज, बट उसके पीछे का इमोशन क्या है वो कन्वे करना इज लर्निंग भी नहीं होगी. दैट्स द स्टोरी टेलिंग. या दैट्स वेयर स्टोरी टेलिंग कम्स इन. कि अच्छा क्या अब एक ये नहीं लर्न, हाँ मतलब भाई कि उससे क्या लर्निंग मिली, इस बार क्या हुआ. तो दैट इज काइंड ऑफ वेयर आई एम आल्सो एट इन माय लाइफ कि अच्छा ठीक है, आई एम फिगरिंग इट आउट थ्रू लाइक एज द लाइफ ग्रोज, लाइक मैं ग्रो हो रहा हूँ उसके साथ साथ. तो वही है, वो अपना, तो वो चीज थोड़ा सा इट्स लाइक उसको खरीदना पड़ता है, वहां तक पहुंचना पड़ता है. वो 4 गाने बनाने के बाद 5वें गाने पे शायद आती है चीज कि अच्छा ठीक है ये, पर उसमें मजा और आता है ना. हाँ वो तो फिर वो थेरेप्यूटिक है. यस, स्टूडियो सेशंस बन गए थेरेपी. या दैट भाई, तो मैं कह रहा हूँ कि वो कमिंग बैक टू व्हाट यू वर आस्किंग अर्लियर, मीन ने मेरे को वो बताया है कि अच्छा ठीक है ब्रो, ये है तू, एंड देन यू नीड टू take these stories further, evolve these stories as you evolve in different sounds. So like the album that I am sitting on since पता नहीं कब से, Masterclass, is a different sound. उसमें there is a lot of grunge, there is a lot of electronic sounds, but old school, like all of that is very old school hip hop, but grunge उसमें like Nicholas played guitars, there are solos, there is a lot of shit there. तो वो एक साउंडस्केप में वो हो चुकी है, मतलब वो मिक्स मास्टर हम लोग बस वेट कर रहे हैं कि हम लोग को डेट मिले और फिगर आउट हो चीजें, सो दैट वी फाइनल मिक्स मास्टर करके निकालें. क्योंकि मिक्स मास्टर करके उसको रख दोगे 6 महीना, फिर 6 महीने बाद वो होगा कि अब इसमें ये भी चेंज हो सकता है, फिर वापस प्रोजेक्ट खोलना है बीटी. तो वी हैव जस्ट केप्ट इट ऐसा कि फाइनल मिक्स करके उसको मास्टर करके निकाल दें. तो दैट इज वन साउंड. अब वही है कि उसमें कुछ काफी सारी चीजें हैं कि ओके, एक और एंगल उसमें ये है कि हो गया बहुत सारी चीजें ऐसा मैंने बोल दी है, ठीक है, इमोशन वाइज एंड ऑल दैट शिट. तो अब नाउ आई एम आल्सो स्टार्टिंग टू गो विद कि फक इट, लेट्स सी आर्टिस्टिकली मैं कैसे कैसे फ्लोज कर सकता हूँ, कैसे पेन पेन शार्प कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, मतलब हाउ कैन आई क्रिएटिवली से फर्दर चीजें जो भी हैं वो क्रिएटिवली कैसे बोल सकता हूँ. Yeah, we got my homie. We got my homie with me. I got my homies with me everywhere. Love it. Looking out. But speaking of growing, you grew up in Gorakhpur, है ना? You were there till college? No, I was there till 12th. School. Okay. I did my boards from. This tree is so beautiful. My God, I'm sorry, I'm admiring. It's like a tree of life. Yeah, precisely. So इधर भी अपन like there is a video of us, उसमें रावल भी है, उसमें काफी लोग कोड भी है शायद उसमें. यहाँ पे एक वो लगा के क्या कहते हैं सेटअप लगा के ये जो टर्न है ना, इधर भी एक पूरा UML का साइफर हो रखा है. हाँ, पूरा like I think it's a 7 minute का साइफर. What is that called? Is that on YouTube? I have to check if that's on YouTube. I'll have to see. I will put it in the description of this. Yeah, I'll see if it's there. Lovely. कहीं तो होगा वो किसी के पास, लेकिन पता नहीं YouTube पे है कि नहीं है. I'm loving this, by the way, walking and talking to you, because
freaking hell, I've never been to this side. I lived in Delhi for 2 years. So ये Like a रास्ता fool, I never- क्या कहते हैं, आगे जाके उधर कनेक्ट हो जाता है सफदरजंग साइड, हुमायूं वाला got साइड. it. Okay. So you're from Gorakhpur, है ना? Yeah. I don't know anyone else from there. So I would love to know, how was your childhood there? What sort of defined you as a person? यार गोरखपुर हैज बिन होम, मतलब फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. अभी भी मतलब पापा उधर ही हैं, दादाजी भी उधर ही हैं, तो इट्स जस्ट बिन लाइक ऐसा. स्टार्टिंग में तो सब कुछ मैंने उधर ही सीखा है, लाइक फैमिली में जो भी कल्चर है और वो सब है. नेपाल काफ़ी पास था, तो हम लोग लाइक म्यूजिक आई पिक्ड अप फ्रॉम देयर, लाइक एज इन नेपाल. एंड मतलब जो भी वहाँ से हम लोग आते थे तो CDs वगैरह ड्राइव करते वक्त. तो So you used to cross over and या travel मतलब there? छोटे कभी वेकेशंस मिल गए 2-3 दिन के भी, तो यूज्ड टू गो टू पोखरा, चिल देयर फॉर अ कपल ऑफ डेज एंड कम बैक. तो एंड आल्सो लाइक स्कूलिंग वगैरह गोरखपुर में हुई है, तो इट्स बिन स्टार्टिंग में तो इट्स बिन वेरी वो कि भाई आई हैव सीन लाइक मदर बीइंग टोल्ड कि भाई जो करना है करो, लेकिन 8 बजे के पहले घर आ जाना, क्योंकि सीन है. मतलब वो unsafe है. Yeah, it was unsafe. It was okay. a lot of like gang violence, a lot of this shit going down. उस वक्त काफी छोटा भी था वो शहर in terms of, आज तो कुछ और ही है वो, मतलब. And I've seen that city also kind of grow and morph into what it is right now. But उस वक्त नहीं था, काफी नहीं था उधर. मतलब हमने I think मॉल वॉल भी 2006-07 में देखा है शायद से. Okay. पहला मॉल था वो शहर का, और वो डब्बा है. अब के स्टैंडर्ड से तो डब्बा है वो, मतलब बेसिकली. बट या आई मीन वो है, बट वही है कि वहाँ पे हम लोग शहर से बाहर कहीं लाइक साइकिलिंग करते हुए या कहीं चले गए आसपास, तो देयर इज अ ताल, लाइक रामगढ़ ताल बोलते हैं उसको. तो वो बहुत बड़ा है और काइंड ऑफ गोरखपुर समवॉट उसके अराउंड ही है, लाइक अब तो एकदम ही उसके अराउंड है. उस वक्त इतना वो नहीं था, मतलब सिटी नहीं था वो. तो हम लोग कहीं साइड वाइड में चले जाते थे, वो राप्ती नदी के आसपास चले जाते थे. वहाँ पे लाइक देयर हैव बीन पहले तो चलो गोरखपुर में जब स्कूलिंग वूलिंग करी है मैंने, तो भाई वो फिर घर से स्कूल से घर से ट्यूशन, और वही चलता था. एंड बाकी दोस्तों के यहाँ गेम वेम खेल लिया, लाइक आई एम स्टिल अ नर्ड, मतलब ऐसा घर में गेम खेलने वाला सीन ही रहता था हम लोगों का कि भाई किसी के घर चले गए, वहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है, कुछ भी टेकन टूर्नामेंट या कुछ भी हो रहा है. कौन सा गेम? टेकन, CS कुछ भी खेल रहे हैं, मतलब PC गेम्स बेसिकली, या इवन लाइक बोर्ड गेम्स एंड शिट. हम लोग काफी बोर्ड गेम्स भी खेला है बचपन में. तो क्योंकि हम लोग के लाइक मेरे एक फ्रेंड की बहन थी, बड़ी बहन थी, तो वो हम लोग को खिलाती थी बोर्ड गेम्स. तो वही है, वो घर में ही होता था. बट अ लॉट ऑफ गोरखपुर आई स्टार्टेड एक्चुअली एक्सप्लोरिंग व्हेन इट गॉट अ लिटिल मोर सेफर. एंड मैं कॉलेज से समर वेकेशन के लिए कभी 1-1.5 महीने के लिए घर आया हूँ. तो अब थोड़ा सा फ्रीडम भी मिल गई है, थोड़ा सा सेफ भी हो गया है. तो वो है, पहले तो नहीं होता था, मतलब मेरे को तो मतलब थोड़ा प्रोटेक्टेड रहते थे, या मतलब रहना ही पड़ता ही था. मतलब वहाँ पे काफी तो ऐसा RX 100 एक टाइम पे बैंड, RX 100 वो पतली वाली जो बाइक होती है ना, वो बैंड थी, क्योंकि इतना गैंग वायलेंस था. वो लोग मार के मतलब वो बाइक के थ्रू गली वली से निकल जाते थे लोग, तो इट वाज बैंड देयर फॉर सम टाइम कि ओ नहीं ये तो चलेगी नहीं, मतलब. हाँ भाई एग्जैक्टली, गेट अवे व्हीकल था वो बेसिकली. तो वो सब सीन था. बट इवेंचुअली जैसे जैसे चीज़ें ठीक हुई, तो फिर मैं और आई स्टार्टेड राइटिंग, गोइंग टू लाइक दीज ऑड स्पॉट्स अराउंड द सिटी एंड गोइंग देयर. वहाँ पे जाके लिख रहा हूँ मैं, कुछ भैया लोगों के साथ चिल करने लग गया मैं थोड़ा सा. तो एंड आई इन लाइक मेरे लिए गोरखपुर में मेरे अपने एज के दोस्तों से ज़्यादा 2-3 दोस्त ही थे, ज़्यादा हैव बीन माई लाइक सीनियर्स फ्रॉम स्कूल, बिकॉज दे ऑल्सो यूज्ड टू लाइक दे हैड अ बैंड. तो वहाँ पे एक म्यूजिक का वो था, तो मैं उनके साथ चिल करता था. तो वो लोग और बड़े हो गए बाय द टाइम आई वाज इन माय कॉलेज. तो थोड़ा सा उनके साथ ही आउटस्कर्ट्स में जाके जैम कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं. नाइस. क्योंकि नहीं था कुछ, मतलब ऐसे अभी भी गोरखपुर में वो वाला पॉइंट तो है कि एज इफ आई गो राइट नाउ, आई एम लाइक ओके, इफ आई एम वर्किंग देयर आई एम वर्किंग, और इफ आई एम चिलिंग विद सम फ्रेंड आई एम चिलिंग. लेकिन उसके अलावा एज सच कुछ नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है, मतलब है नहीं अभी भी. मतलब हाँ, मतलब माय लाइक ऐसा स्कूल सीनियर हैज अ गेमिंग पार्लर देयर. ओके. तो एंड अ कैफे. तो हम लोग वहीं चिल करते हैं. अगेन वही हो गया, वो घूम फिर के बाद वहीं आ जाती है कि गेम की, अभी भी गेम ही खेल रहे हैं, अभी भी कैफे, मतलब वही है, कॉफी पी रहे हैं, चिल कर रहे हैं घर में ही. चिल. You still, when you go back, you feel at home more there, like a comfort level, or now Delhi is it?
अभी the last time I went, I have seen कि उधर हिप हॉप का सीन हो गया है. वहाँ पे आस्तिक है, वहाँ पे आर्या है, वहाँ पे और भी काफी लोग हैं. तो shout out both y'all motherfuckers, y'all are on the fucking album, man. So yeah, I mean, I made some music with them and फिर तो अभी मेरा थोड़ा सा वो हो गया है कि I have something to do there now. कि okay, अब मैं जाऊँगा जो भी है तो वहाँ पे लौंडे रैप कर रहे हैं. काफी अभी से 1-1.5 साल पहले तक भी इतना खुले वो लोग खुद नहीं खुले थे. मतलब वो गोरखपुर साइफर वाला पेज अब खुला है. अच्छा। लाइक अभी 6-8 महीने पहले बनाया उन लोगों ने. तो नाउ देयर इज शिट. बट अभी 2 साल तक तो मेरे को वही था कि हाँ भाई मतलब ठीक है मैं घर जाऊंगा, घर है वहाँ पे. लेकिन घर के बियॉन्ड उतना मतलब भैया लोगों से मिल लिया, दादाजी से मिल लिया, ठीक है भाई डन. 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन. उसके बाद लगता था कि नहीं यार सीन तो दिल्ली में ही है. प्लस आफ्टर लाइक आई लॉस्ट माय मदर इन 2018. उसके बाद स्कूल. तो उसके बाद थोड़ा वो भी हो जाता है कि यार पापा भी काम में बिजी हैं. एंड लाइक माय चाचू चाची है मूव्ड इन सिंस लाइक उस टाइम से वो लोग हैं. तो उनका भी बेटा है हर्षित. तो बट उनका भी वही है मतलब उसका भी स्कूल चल रहा है. तो एवरीबडी इज इन देयर ओन स्पेस. तो डैड इज स्टिल प्रैक्टिसिंग, ही गोज सिट्स इन द क्लिनिक एंड थोड़ा बहुत जो भी है वो उनका रहता है कि भाई मेरे को आइडल नहीं बैठना अभी भी. तो That's good. Yeah, it's great. तो वही that's what I'm saying कि सबका अपना अपना चलता रहता है. Everyone's busy in their तो मैं जाता हूँ तो मेरा होता है चलो ठीक है सबसे मिल लिया. लेकिन मेरा रूटीन क्या है, मैं छुट्टी नहीं मना सकता. लाइक एट दिस पॉइंट इन माई लाइफ, इन माई हेड, अगर मैं उठ के अपने सिस्टम पे बैठ नहीं रहा हूँ विथ माई बैक स्ट्रेट एंड नॉट वर्किंग ऑन शिट, तब तक मेरे को जाता है कि कमी है कुछ. Yeah, I get it. तो उस वजह से बस होता है कि चलो ठीक है. बट वही है कि अब नाउ देयर इज दिस सीन कमिंग अप. तो आई थिंक नाउ इफ आई गो बैक I have also like places to work around with hip hop and see what's going on. Yeah. And do that. Yeah. Okay, nice. So how is I would say coming to the city and specifically this industry is like very changes you in more ways than you can count, right? Yeah. And I was reading something that I remember Sez's post. Yeah. You know which I'm talking about. Yeah, the recent. I know what you're talking about. Back in the day, scene aisa tha. Everyone had hunger. Yeah. Now there's certain formulaic stuff. Yeah. Maybe that's coming out. What are your thoughts on that? I would love to know because you've been in the scene also. Yeah. From the early days. I mean, with these people. कभी किसी भी चीज में मशीनरी डालोगे तो वो एक कुकी कटर में तो आ ही जाएगी. तो मतलब फॉर्मूला मशीन तो फॉर्मूले पे ही चलती है ना. हाँ, पर like specifically rappers का जो cookie cutter से aversion रहा है, like you guys consciously try to do your own thing. We still do that. I still am like with my music, I am doing that, trying to do that. कि अच्छा ठीक है और क्या कर सकते हैं मतलब but वही है. I felt bad that someone like Sez was noticing it and saying it. Sez has been noticing it since a long time. Like when we conversate, of course कुछ ये सब चीजें भी बात होती हैं कि भाई क्या चल रहा है मतलब अभी what's going on, like as in कि what do you feel about the scene, what do I feel about the scene, and everybody will have their own what to say. But I feel एक तो कोई भी नई चीज होती है तो उसका अपील एक तरीके का होता है. फिर धीरे धीरे तुम उसके यूज्ड टू होने लगते हो. फिर लाइक एप्पल स्टार्टिंग में लोग कहते थे कि ओ अब ये नई इनोवेशन लाइक नेक्स्ट आईफोन में क्या कर रहे हैं ये लोग. अभी हो गया कि भाई क्या ही कर लोगे और तो कहीं ना कहीं आर्टिस्ट का भी मतलब माइंड स्टेट शायद वो हो गया कुछ आर्टिस्ट का कि भाई ठीक है इफ दिस इज वर्किंग, इफ आई एम सेलिंग अ फोन एंड इट्स सेलिंग गुड, देन आई डोंट नीड टू चेंज मच. आई कैन जस्ट tweak something and just present it maybe. तो वो काफी आर्टिस्ट के साथ भी हो सकता है हो गया हो. But it's also that generational shit takes a little time to come, I feel. मतलब अगर आज की डेट में तुम मतलब कैसे without I don't like want it to sound like ऐसा कि comfort space की बात है, वो comfort space की भी बात नहीं है. वो बात है कि भाई do you want to in this current scenario of the scene and not even like the hip hop scene, just in general as an artist, as a personality on the internet, if you want to exist you need to just keep on with the trends or whatever. That is your blue pill red pill to take कि भाई तुम 2 साल शायद तुम कुछ पैसे ना कमाओ, 3 साल शायद तुम कुछ ना कमाओ, but when you come back with such a thing which you know कि भाई तुम गांडी फाड़ दोगे. अब क्या वो 100% वैसा ही है आज की डेट में जैसा पहले था कि अच्छी चीजें तो चलेगी ही चलेगी, पता नहीं कब क्या हो जाए. अगर कल को एक और तुम 3 साल से बैठे हो कि भाई मेरे को एल्बम डालनी, जब तुम एल्बम डाल रहे हो तब तक पैंडेमिक आ गया एक और, क्या करोगे फिर? तो तब कुछ वो तो वही है कि तो अब उस सीन में क्या है कि भाई जो है जैसा है करके डालो.
Okay, उसको got it. like you make it exist, you can make it better later बोलते हैं. Got it. तो Make it exist first, put it yeah, out there. yeah, And you can, it'll give you some returns. yeah. अब वही है all Cook it this, properly later in the yeah, future. but I feel like. अगर आप मेरे से पूछोगे तो मेरा तो भाई मतलब लिविंग एग्जांपल ऑफ कि भाई मैंने मीन के बाद नहीं डाला काफी टाइम से कुछ, क्योंकि मैं अभी उस जोन में हूँ कि यू नो व्हेन आई स्टार्ट ऑफ आई नीड टू स्टार्ट ऑफ विद द बेस्ट शिट दैट आई कैन पुट आउट. Right. वो ऐसा हाफ हार्टेडली नहीं करना है. तो दैट इज माई टेक ऑन थिंग्स समटाइम्स. बट वही है कि एज अ कल्चर आई थिंक सेज कम्स फ्रॉम अ पॉइंट वेयर इट्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ कल्चर कि यू नो हाउ डू वी, वो हंगर वाली बात तो मैं भी रेजोनेट करता हूँ कि शायद क्योंकि तुमको मतलब इट्स थोड़ा सा देखो इजी हो गया म्यूजिक बनाना. अच्छा. तुम More than before, obviously. या because, 100% या access सबको and या everything मतलब else. हम लोग को FL सीखने में बहुत, समझने में, डाउनलोड करने में कहीं से मिलता था, मतलब वो बहुत अलग सीन था. अभी सब कुछ काफी आउट देयर है. Right, right. तो इजी हो गया है तो थोड़ा फॉर ग्रांटेड तो कुछ लोग लेंगे ही उस चीज को. हाँ. उससे वो भी आ जाता है कि भाई चल ठीक है मस्ती मजाक में कर रहे हैं. हम लोग के लिए बस वही पर्सपेक्टिव है यार. कुछ बच्चों के लिए वो म्यूजिक बनाना मस्ती है, Right. ठीक है, उसमें कोई आई डोंट थिंक कोई बुराई है. बट हाँ हम लोग के लिए म्यूजिक कल्चर है, हम लोग के लिए वो सीरियस शिट है, बिजनेस है वो बेसिकली. तो वी नीड टू यू नो take like look at it from that perspective कि भाई respect it from that perspective. It's not for us, it's not content on IG or content on YouTube, it's music for us. तो वही है कि तुम वही ब्लू पिल रेड पिल है कि तुम क्या, तुम एज म्यूजिक को एज अ कंटेंट देख रहे हो कि तुमको बस डालते रहना है ताकि यू नीड टू बी ऑन टॉप ऑफ द पीपल्स माइंड्स कि भाई यू आर एन आर्टिस्ट, यू नीड टू कीप डूइंग लाइक यू आर डूइंग दिस, यू आर एक्टिव, यू आर रेलेवेंट, और यू आर सिक्योर इनफ एंड बिलीव एंड हैव फेथ इनफ कि भाई तुम छोड़ दो, कर जाओ 2 साल बाद कुछ क्रेजी जनरेशनल शिट अपने जो तुमको लगता है जनरेशनल वो बना के लाओ और फिर देखो क्या होता है. Yeah, but speaking of secure enough, is it an industry full of insecurities? I sense the answer would be yes. But Yeah. I want to know your perspective कि कैसे हो artist secure? यार इनसिक्योरिटी आई थिंक क्योंकि rappers तो ज़्यादा वो bravado भी रहता है. हाँ देखो बहुत कुछ तो वो प्रिटेंस भी है. मैं तो उसमें बोलता हूँ कि भाई इफ आई एवर फ्लेक्स इट्स जस्ट इमेजिन दैट आई इमेजिन माई सेल्फ दैट आई एम इन अ बॉक्सिंग मैच एंड आई नीड टू जस्ट से द हार्डेस्ट शिट दैट कम्स अप. हाँ. एंड Okay. बट Sometimes you believe it. I believe it all the time. I believe it all the time. Okay. But that's I know good. that it's a sport. Right. Okay. You have to put that out there. that Yeah, energy. like you know, कुछ तो एक J Cole का वो है कि I'm paraphrasing in Hindi just like वैसा है कि सबके पास बंदूक है तो फिर मैं भी मतलब AK-47 लेके सब पे शूट करके मार दूंगा सबको. मतलब वो ऐसे बोल रहा है, समझ रहे हो? तो मेरा मतलब वही है कि हाँ भाई मतलब अगर I got the bigger and that's what I gun. was talking to you earlier कि जब when I say like you know अगर आपको दिखाना है कि आपकी पेन strong like you know you are creative with the way that you write whatever you write. Yeah. उसको कहने के अलग अलग तरीके, तुम कुछ भी कह सकते हो. और तुम लाइक यू नो फ्लेक्स फॉर मी इज नॉट फ्लेक्सिंग अबाउट मनी और फ्लेक्सिंग अबाउट यू नो petty shit. Yeah. It's about flexing your personality, who you are, Your values and values, your- values, Yeah. morals, principles, हाँ. जो भी है, what do you stand for? Right. Flex about that. Yes. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ like I have this mixtape called Bragging Rights, जो है अभी है मतलब पड़ी है अभी. तो Bragging Rights का पूरा concept ही वही है कि I will brag, but I will brag about where I come from. I will brag about what I've done. I will brag about My achievements, personal yeah, and मतलब otherwise. personal and otherwise, how I've grown. I'll brag about how I've grown. Yes. I'll brag about what I've learned from life. Yes, I like it. And that's worthy to you know brag about. Yeah. क्योंकि हो सकता है तुमने like you are proud of yourself, the person that you are. You have to brag about that. Like Yeah. instead of like you know beef करके किसी और के बारे में गाने लिखूं मैं. मतलब ठीक है जिसका जो है वो है, लेकिन मेरा पर्सनली वो उतना है नहीं. तो इनसिक्योरिटी इसलिए भी आती है आई फील लोगों में क्योंकि यार बहुत छोटा सीन है और छोटा अभी भी you feel? अभी भी बहुत छोटा है यार. मतलब Yeah, कहाँ comparatively. कहाँ कितने अपॉर्चुनिटीज हैं. रैपर्स बहुत हैं Right. लेकिन कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं Oh, that और जो is- ले दे के अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें क्वालिटी अपॉर्चुनिटीज कितनी हैं Okay. कि So is there still a crab mentality going around? इट 100% Because इज of- okay, 100% इज. that's- देखो अभी भी वही है कि सब कोई एक दूसरे के गले पे ही है कि भाई जिसको जहां से जो मिल जाए अपॉर्चुनिटी वो सीज करके अपना पैसा बनाने वाली बात.
क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आई फील लोगों के दिमाग में है कि पता नहीं है बबल कब तक रहेगा. वो तो इनसिक्योरिटी रहती है when you're not in a 9 to 5 है ना. Yeah, you've chosen this life. Exactly. But for me I feel it's कि भाई देखो बबल रहे ना रहे तुम्हारा काम ऐसा होना चाहिए कि तुम उस चीज को ट्रांसेंड कर पाओ. तो I love that. मतलब तभी मेरा अगेन कमिंग बैक टू दैट पॉइंट ओनली कि ठीक है भाई आई टेक व्हाटएवर ब्लू पिल रेड पिल जो भी है आई टेक द पिल वेयर it takes some time but people take me seriously as the person that I'm trying to be, you know, like as a musician I'm trying to be a musician, right? मतलब I'm ठीक है मैं रैपर हूँ मैं और क्या हूँ मैं म्यूजिशियन मैं ऐसे ऑनलाइन रैपर नहीं हूँ यूट्यूब रैपर या IG रैपर कि मैं रोज रील डाल रहे हैं जो भी है उससे नहीं ठीक है वो सब बाय प्रोडक्ट है जब मैं रोल आउट करूंगा अब मेरे को अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ देखनी पड़ेगी लेकिन मतलब कि साथ साथ में जस्ट एन एडिशनल टास्क कि भाई म्यूजिक वीडियो शूट करनी है अच्छा रील भी शूट करनी है लेकिन हाँ अभी वो सब करने के बाद मैं फिर वहीं जाके घुसूंगा जहाँ पे there are 5 other artists trying and their managers trying to battle it out for one spot in some show or whatever it is and my music will speak for that कि भाई अच्छा why should I get it तो अब वही पार्ट आ जाता है ना कि जो अब क्योंकि ब्रांड्स ले दे के एक सर्टेन टाइप के ही एसोसिएट करेंगे इस सेगमेंट के साथ तो या तो तुम अपना एक सेगमेंट बनाओ वैसा अपने म्यूजिक से एक सब मतलब यू नो लाइक अट्रैक्ट मेक म्यूजिक व्हिच अट्रैक्ट्स मे बी डिफरेंट ब्रांड्स मतलब एंड व्हिच यू नो अफिलिएट टू योर क्योंकि एट द एंड यू आर सेलिंग स्टफ फॉर अदर पीपल राइट एंड स्टफ भी नहीं आइडियाज यू आर सेलिंग एन आइडिया अब बाद में उससे मतलब बेनिफिट करने के लिए चाहे जो भी आए जैसे भी आए लेकिन अगर उतना किसी में दिमाग ही नहीं है कि वो अपॉर्चुनिटीज फ्लिप करके उसमें मतलब यू नो यू कैन नॉट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर योरसेल्फ तो इफ यू आर जस्ट डिपेंडेड ऑन कि भाई हाँ मैं ये गाने डाल रहा हूँ और गाना डालने के बाद मेरे को ये हो जाएगा वो हो जाएगा एंड दैट्स इट तो कहीं ना कहीं वो 4-5 लोग की बैटल वाला सिनेरियो ही आ जाता है कि भाई देयर आर स्मॉल अपॉर्चुनिटीज़ कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं साल में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ शोज ही हो रहे हैं साल के एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फेस्टिवल्स ही हो रहे हैं वही उतने ही ब्रांड्स हैं जो हिप हॉप से एसोसिएट करेंगे अब तुम उसी में शफल करते रहो और फिर एक दूसरे का पत्ता काटो कि ओ फक नहीं इस बार मैं कर लिया इस बार वो कर लिया अगर तुम में वो है कि you don't care your music and your personality and your whatever presence drives calls for you कि people want you they are calling you for you there are no other person involved then you'll be secure then you're fine no one can replace me no one can be me that तो but वही है वो चीज कम है okay is there anything you personally felt that you had to give up on to stay in the scene or stay relevant in the scene in terms of like a personal thing like a value or a good question. I just thought earlier कि मैं ये पैसे के लिए नहीं कर रहा but I realized कि अगर पैसे नहीं होंगे तो मैं कर नहीं पाऊंगा right बस वो एक बहुत बड़ा मतलब वो बहुत बड़ा है थोड़ा mental flip है वो हाँ वो flip है लेकिन हाँ मतलब वही है कि I need to be in a good mental state to create better music and that comes from feeling secure exactly and for me it's not कि भाई मेरे को क्योंकि मेरे आसपास मेरे को पैसों से रिलेटेड इतना वो नहीं होता क्योंकि मेरे को पता है कि एक तो मेरी टीम अच्छी है कि मैं they'll get me by basically and वो उनको भी पता है कि मैं खुद भी कर लूंगा फिगर आउट काफी चीजें अपने से क्योंकि there has been like I've been doing this independently also for so much time कि कुछ भी होगा तो मैं बात कर लेता हूँ मतलब अपनी टीम से कि भाई मेरे को ऐसा लग रहा है जो भी है तो क्या करना है अभी like you know तो that support is there that support is there that's good that's so important तो satisfied रहना कि भाई हाँ ठीक है अभी और प्रोसेस है यार प्रोसेस में बिलीव मैं तो अभी उस पॉइंट पे हूँ भी नहीं कि मैं इस सब चीज़ों के बारे में मतलब उस तरीके से बात कर पाऊँ लेकिन मेरे आसपास सीधे मौत भी है मेरे आसपास रागा भी है और मेरे आसपास और भी लोग हैं जो भी है एंड वी आर ऑल इन आवर डिफरेंट जर्नीज बट मैंने वही देखा है
कि भाई money makes you do good for yourself and good for like the people around you, and that's a good spot to be in, where other people, the people that you love, can benefit from you. Yeah. Like it's just that. And the life you've chosen. Yeah, it's exactly. It's got to benefit them also. Yeah, है ना? yeah. Beach mein you mentioned something about beefs, and you've never really had a beef. No, not really. You haven't. No. I've had, but not ऐसा internet beefs. What? हाँ मतलब इंटरनेट पे Offline? हाँ ऑफलाइन बीफ्स तो बहुत हुई हैं यार, मतलब हाँ मतलब नॉट विद रैपर्स, अच्छा, मतलब वैसे एक था रैपर, एक था रैपर sounds like a song, next song. एक था वो, बट हाँ मतलब उसके अलावा तो इतना मतलब ऐसे नहीं सीन हुआ किसी के साथ नहीं हुआ इसमें तो. I had Yashraj on the drill with me, and he said कि if you had to beef with your favorite beef be with, he said you. He said हम love letters लिखेंगे. हाँ भाई उसको तो लपेटे में लूंगा मैं उसके. अब we'll have like a complimentary face off where it's just कि ओ तू इतना अच्छा है भाई तेरी mustache यशराज. Oh, it's rocky right now. Loving the stash. No, that's why you say हम love letters लिखेंगे. Yeah. यंगी के साथ तो मजा ही आएगा. Yeah. Good. I was saying कि I hope these beefs happen. He's like, what is wrong with you? So, moving on from beefs, but kind of in the same region, you left the show that shall not be named. Yeah, thou shall not be named. Yes. What happened there? I'm asking this only because not to talk about the show, but No, of for course, people who are watching and artists who might be watching. Should we go from here? हाँ, up to you. आ जाओ. उनको समझ आना चाहिए कि क्या उनके साथ नहीं होना चाहिए, and when they should say no to something. Yeah. It's very important. Yeah. So क्या हुआ था वो थोड़ा सा समझा. I mean, initially देखो मीन आ रखी थी उस वक्त, and I like we kind of they approached us and we approached them from the perspective कि okay we might perform a couple of tracks sometime in the show. You're leading the way. So yeah, please. So, but then they were like oh we are a fan of Youngi's work and all of that. So we were like cool, सही है. They are respectful enough. Okay. So we said yes to the show. Okay. Then we figured out कि भाई मतलब and it was like also कि भाई ठीक है उनके लिए कुछ गाने बनाने होंगे बना देंगे, कुछ गाने हम अपने परफॉर्म करेंगे, थोड़ा सा क्रॉस It'll be a mix. होगा या तो good time also कि एल्बम आ रखी है and all that album also narrative wise is pretty like paints a pretty clear picture of who Youngsta is. Yeah. तो it was a right and ripe time. Yeah, exactly. तो plus during the auditions also they showed me काफी like ऐसा love कि good shit, अच्छा काम कर रहे हो यो. तो बट उधर जाके फिगर आउट हुआ कि फर्स्ट वी नीड टू sign a contract where we are technically signing them everything for the next 2 years and all your releases like releases and वो सब जो भी है और मेरे so basically essentially this is the place now. उन्होंने चेंज कर दिया पूरा स्विच अप ही कर दिया सब कुछ. सो आई मीन वो 2 साल सब कुछ आगे और मेरे लिए भी थोड़ा सेंस नहीं बना रहा था कि the money that they were offering, I was already working with Sez. Yeah. And I was like, it's not only like the maths was not mathing Math was with not mathing, got me, it. also with the people that I work with. Yeah. Like मेरे लिए enough नहीं है, plus मैं Sez के साथ काम कर रहा हूँ और फिर वो बात हो जाती है कि भाई after the show ends and all that तुम वो क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हो जो मतलब तुम्हारी इसके पहले थी, वो मेरे लिए भी सही नहीं है क्योंकि वो मैच नहीं हो रही है मैथ. तो उसके ऊपर से मैं 12 गाने तुमको शो के वक्त दे रहा हूँ, उसके बाद मैं 10 चीज़ें और कर रहा हूँ. मैं इससे अच्छा मैं जाके किसी लेवल से बात करके उनके साथ एक गाने की डील ना कर लूँ. मेरे को इतना रियलिटी शो का पापड़ क्यों बेल. और उसके ऊपर से तुम लोग वहाँ पे जाके बता रहे हो कि तुमको नए नए गाने चाहिए कुछ कल को, मतलब और तुम लोग ऐसे मतलब आई तो डिड नॉट लिटरली ड्यूरिंग द ट्रेनिंग व्हाटएवर बूट कैंप सेशन मैं तो एक बार भी बैठा भी नहीं उनके मतलब उधर गाने सुनाने के लिए. दे वर नॉट इवन आस्किंग आई थिंक मी जब तक वो साइन नहीं हो जाता कॉन्ट्रैक्ट या जो भी है तो मैं कर भी नहीं रहा था, मैं कुछ सुना भी नहीं रहा था. बट देन वही है कि एक टाइम के बाद आई वाज लाइक कि भाई तुम लोग चेंज करवा रहे हो गाने और लाइक ऑन द स्पॉट
adjustments and all Yeah, happening. like okay, you're changing the vision of a song. There's some, I think Shaf came to me very frustrated and he was like कि भाई मेरे एक पंचलाइन चेंज करवा रहे हैं, जो पंचलाइन चेंज करने के बाद उसका मीनिंग ही नहीं बचेगा. तो मैंने कहा ऑफ कोर्स नहीं बचेगा मीनिंग, और वो क्यों चेंज करवा रहे हैं, मतलब क्या है ये, लाइक व्हाट इज दिस. तो लाइक कि भाई चलो ठीक है, ये अभी बूट कैंप में हो रहा है, ठीक है ये अगर, और ये बाद में हुआ भी काफी लोगों के साथ, लेकिन अगर ये लोग मेरा थोड़ा सा ऐसा एक दिन पहले मेरे को गाना चेंज करने के लिए बोलेंगे और फिर कुछ भी होता है, तो किसके ऊपर है वो मेरे ऊपर ही है. कुछ भी फकअप हो गया, जो भी हो मेरे ऊपर ही है. बट इट्स नॉट द राइट वे टू डू थिंग्स, एंड लाइक द थिंग्स दैट यू आर डूइंग आल्सो. ओह yeah, like it's rap music, man, and it's the first time someone is signing fucking 16 17 artists, 20 artists under one roof at the same time. Rappers, hip hop, nah man, like I cannot be a part of that shit, like yeah, so मतलब वही है, प्रिंसिपल्स नहीं अलाइन हो रहे थे. बहुत सारे लूप होल्स भी थे, और बहुत सारे लूप होल्स थे. बहुत सारी बातें भी ऐसी हुई हैं जो मेरा दिमाग घुमा दी, एंड लाइक ये सब तो लाइक ना मैन, एंड आई हैड टू जस्ट गेट आउट फ्रॉम देयर, सो आई जस्ट. and I'm sure you don't regret it because No, I don't regret. No, not at all. चीजें हुई हैं बाद में भी. Yeah, 100%. with you also and with the Yeah. I mean that's one thing. No, I was telling you about this IIT thing also. ना मतलब मेरी इंस्टिंक्ट कभी जब एकदम ही वो हो जाते हैं ना कि ओ ब्रो फक दिस शिट, तो फिर वो मेरे को लगता है कि भाई सही है भाई, तुम्हारा गट तुम्हें सही चीज बोल रहा है. exactly. Always go with the first. या जब वो स्टार्टिंग से ही मेरा रहता है कि वो नहीं, ये तो कुछ गड़बड़ है, तो फिर उसमें घुसने का कोई पॉइंट नहीं रहता. Yeah. Do you like what has come with your name growing in the scene, like if I were to call it fame? Yeah. Do you like fame? How do you deal with fame? Is fame something that makes you uncomfortable, or you're like No, I like it. Okay. मतलब बाय प्रोडक्ट. Does it make you lonelier? Does it make you more distant from reality? मैं वैसे भी काफी डिस्टेंट टू रियलिटी से. मतलब in the sense of when I'm alone, I am in my own world. मैं क्रिएट कर रहा होता हूँ, या मैं कुछ देख रहा होता हूँ, या मैं गेम खेल रहा होता हूँ. But that's a good distant. Yeah, that in that sense only. Okay, but good. I was thinking the other. Yeah, bad I'm coming to distant. that. Okay. But when it comes to like fame, as in, एक तो देखो, to be very honest, आज के स्टैंडर्ड्स में अगर तुम देख रहे हो तो भाई इतने सारे लोग हैं, और फेम इतना इजी कमोडिटी है कि तुम को फेमस अगर होना तो तुम कैसे भी हो सकते हो. ठीक है, that's true. तो कुछ भी करके हो सकते हो. तो मेरे लिए एज आई वाज सेइंग कि जैसे जैसे म्यूजिक डालता जा रहा हूँ, जो लोग आते जा रहे हैं, जो मेरे को बोलते हैं, भाई आज भी मेरे को होता है, मतलब वो चीज़ थोड़ा वियर्ड ही लगता है मेरे को कहीं ना कहीं कि ओ लाइक वो इम्पोस्टर सिंड्रोम का कहीं ना कहीं एक ट्रेस है कि कोई मेरे को बोलता है कि आई एम अ फैन, तो हम लाइक ओ यहाँ मतलब ऐसा सुन रहे हैं क्या लोग, मतलब ऐसा. बट देन हम लाइक हाँ ऑफ कोर्स सुन रहे हैं भाई, मतलब दैट्स व्हाट आई हैव बीन वर्किंग ऑन, तो ऑफ कोर्स सुनेंगे ही वो बहुत. लेकिन वही है, बाय प्रोडक्ट है मेरे लिए फेम. मैं ऐसा उस चीज़ को कभी इतना हीड नहीं देता उस चीज़ को कि ओ ठीक है इट्स अ थिंग. पैसा यस, दैट इज ऑल्सो बाय प्रोडक्ट ऑफ वर्क, लेकिन दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. Yeah, that's more important than the fame. Yeah. What is the most important product of the work for you? चेंज, अपने लाइफ में चेंज, अपना एज अ पर्सनैलिटी चेंज. जैसे जैसे गाने बनाता जाता हूँ वैसे जैसे मैं खुद को और समझता जाता हूँ, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है. कभी आज भी एक ऐसा परफेक्ट 16 अगर लिख देता हूँ, लगता है कि भाई गाड़ी फाड़ दिया, ये सब स्टिल गॉट इट, कैन डू मोर, और करना है. इट्स अ मसल ट्रेनिंग बेसिकली, मतलब इट्स अ मसल ट्रेनिंग. तो वही है. That's the biggest high, no? Yeah, मतलब वो अच्छा काम करना, अच्छा काम निकले, अच्छा गाने, वो लाइक ड्यूरिंग मास्टर क्लास का प्रोसेस भी लाइक वही कि और अपने बारे में कि लाइक नाउ आई हैव स्टार्टेड फिगरिंग इट आउट कि ओ आई एम अ ग्रेट एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एज वेल, आई कैन डू ग्रेट एग्जीक्यूटिव प्रोडक्शन. पूरा मास्टर क्लास मैंने शाउट आउट टू द प्रोड्यूसर्स, ऑल ऑफ देम हैव फकिंग किल्ड इट. एंड बेस्ट पार्ट इज कि वो सारे प्रोड्यूसर्स उतने ओपन थे मेरे साथ कि भाई अच्छा ठीक है, अभी यंगी अगर इसमें कुछ ऐड करने के लिए बोल रहे हैं तो करते हैं, देखते हैं कहाँ जा रही है चीज़ें या जो भी है. तो लाइक यू नो द होल प्रोसेस हैज़ बिन कि मैं एक बीट है 1.5 मिनट की, उस पर मैंने उसको चॉप करके अरेंज करके एक वर्स लिख, लाइक एक हुक लिख दिया, जो भी एक अरेंजमेंट कर दी. उसके बाद और क्या कर सकते हैं. फिर मैंने प्रोड्यूसर को बोला, कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं कि भाई नहीं सही तो लग रहा है, बट दे हैव बीन लाइक ओ हाँ करो, करते हैं, देखते हैं, आ जाओ बैठते हैं, भले ही 4 दिन बाद, लेकिन आ जाओ यंगी रो, बैठते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है. भाई दिल्ली इस पे गिटार बजवाएं क्या,
हाँ कौन बजाएगा, निखिल को पूछता हूँ, निखिल बजाएगा, निखिल बोल रहा हाँ भाई बजा दे, और क्या बजाए, मतलब वही है कि वो सब चीज़ें इतना मस्त है कि then I realized कि okay if I'm thinking about something my decision making in music is like that is nice, मतलब मेरे को है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो वो एक नया एस्पेक्ट फिगर आउट हुआ है मेरे को, अब मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। तो वो सब चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं कि तुम ऐसे आर्टिस्टिकली ग्रो कैसे कर रहे हो, इंसान ग्रो कैसे कर रहे हो। मैं काफ़ी चीज़ें लिखता हूँ तो लगता है ओ ये भी था क्या मेरे अंदर, मतलब वही चीज़ है कि ओ ये भी था क्या, ये ऐसे था, ये था, ये कहाँ से आ रहा है, या कभी कभी होता है कि ओ ये बोल के अच्छा लग रहा है, बोल दिया, फकिंग निकल गया। तो ये सब चीजें मस्त लगती हैं, मतलब वो ज्यादा डोपामीन हिट है। हाँ कि बट व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू फेल्ट दिस? अभी रिसेंटली चलता रहता है यार वो दिन में, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, इट्स अ रेगुलर थिंग। स्टूडियो में बैठते ही इसीलिए सुबह कि भाई अच्छा ठीक है। अभी काफी टाइम बाद मेरे को उस पॉइंट पे आया हूँ मैं, फ्लो स्टेट, जहाँ पे लाइक यू नो दैट्स आल्सो मसल ट्रेनिंग। आई फील कि पहले अगर एक बार फ्लो स्टेट ब्रेक हो गया तो फिर उसमें वापस आने में बहुत टाइम लगता था। अब धीरे धीरे वो चीज इट्स बिकम ईजियर टू गेट इनटू इट कि ठीक है, मतलब अगर मैंने छोड़ दिया लिखना और फिर मैं मिक्सिंग कर रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ, वापस लिखना चालू करना है, तो इतनी दिक्कत नहीं होती क्योंकि मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब क्या कहना है या क्या करना है, हाउ टू अप्रोच, बेसिकली हाउ टू अप्रोच। वो वही है ना कि तुम 10 साल कुछ काम करते हो, तुमको स्टार्ट कैसे करना है वो समझ में आ जाता है, और स्टार्ट करना ही मेन सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। ट्रू, फ्लो स्टेट तो भूल जाओ, स्टार्टिंग हाँ। तो अगर वो बार बार हो जाता है, अब आजकल मैं उसको मतलब उसमें आ गया हूँ कि प्रैक्टिस में आ गया हूँ कि मैं रात को कुछ ना कुछ लिख के ही सोता हूँ, ताकि मैं अगले दिन सुबह उठूँ तो मेरे को पता रहे कि मेरे को करना क्या। ऐसे ब्लैंक होता है जब मैं ब्लैंक भी उठता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ as much as possible। So this area in like this entire thing, जहाँ से हम आए अभी और जो भी है, यहाँ पे हमने एक साइफर शूट कर रखा है, दिल्ली कैपिटल पनिशमेंट साइफर का। उसमें वो सेज ने प्रोड्यूस किया है, उसमें मैं हूँ, क्रेजी क्लिप है, मार्को है, आई थिंक कीपसेक है, प्रभ है, फ्लिक है, बैक इन द डे। वो है अभी भी यूट्यूब पे, आई थिंक कहीं ना कहीं तो होगा। तो यहाँ शूटिंग अलाउड है वैसे, लाइक वीडियो शूटिंग? I mean वो हमने Should we go from here? कुछ Is it, if you want to see the insides of this entire fort thing, it's not coming outside. It's coming outside, आगे कहीं ना कहीं से तो निकलेगा I think। हाँ मतलब या तो इधर से निकलेगा या तो उस तरफ से निकलेगा। No, let's just go back this way. It's हाँ मतलब it's all interconnected though। अच्छा ओ यहाँ से आगे से नहीं है, यहाँ पे बंद हो जाती है, यहाँ से interconnected। यहाँ पे रॉकस्टार शूट हुई थी ना? या some parts of it, yeah। I remember that। वो घूमते हैं, जब घूमने जाते हैं वो दोनों चाय वाय, हाँ मतलब वो पूरा montage sequences here। Yeah। Okay। So what were you saying? यहाँ पे काफी शूट हुए हैं या वो ये? या मतलब शूट तो काफी हुआ है, बट दैट इज वन थिंग जो काफी प्रोमिनेंटली YouTube पे शायद है भी वो। हाँ। और वो काफी प्रोमिनेंटली ये जगह पे शूट हुआ है, अंदर इस वाले टूम के अंदर और ये सब। Very nice। So when you guys meet again now, the vibes are the same. Vibes are always vibing। या मतलब us as in, अगर आप सीधे मौत की बात कर रहे हो, जो मेरे बचपन के दोस्त हैं बेसिकली। अच्छा। सीधे मौत, मी, हाँ। रावल, पनीनी, रागा, बचपन के मतलब फ्रैपे, मतलब नहीं कॉलेज, हाँ मतलब 2015। हाँ ओके, स्टार्टिंग ऑफ द सीन, हाँ सीन के बचपन के दोस्त। ओके कॉलेज। आई वाज लाइक तो या तो I mean Raval and Panini and Raga I know since the longest time। Raga I know since like we were 15 year olds, 16 year olds। Okay। So Raga I know him because Raga I met in Rap Wars season 2 in Bits Pilani, which was in 2011। So yeah, that part। तो हाँ मतलब उधर मिला, उधर दीदी लेके आ रखी थी उसको और मेरे पापा मेरे को लेके जा रखे थे, and that's when I met him there, and eventually then I met Panini online, and that's part of the reason I came to Delhi also, because I knew that there is a scene, there is थोड़ा दिल्ली पास में भी है गोरखपुर से, like overnight है, और there's a scene also ICH में उस वक्त cyphers हुआ करते थे Indian Coffee House में, and I knew that Raga is here, I knew that Panini is here, तो आराम से मतलब इधर हो जाएगा, मतलब ऐसा। ऑल्दो बॉम्बे में मेरे ज़्यादा दोस्त हैं, आई वाज मोर लाइक यू नो उस वक्त ऑनकोर, लाइक अंकुर, दीपा, धवल, ये लोग उधर थे, पोएटिक ये लोग उधर थे, लेकिन थोड़ा दिल्ली पास था तो मैं इधर आ गया। फिर वही धीरे धीरे अभिजय एंड स्नब एंड ये लोग स्टार्टेड कमिंग टू ICH ऑल्सो। तो उस वक्त स्पिट डोप नहीं था, तो
बट उस वक्त मैं इतना अभिजय मतलब द टाइम्स दैट दे हैव बीन आई हैव नॉट बीन टू ICH मतलब वो ऐसा साथ में शायद एक बार ही मिले हम लोग उस वक्त बट इवेंचुअली देन भाई आफ्टर दैट स्पिट डोप हैपेंड एट कुंजुम कैफे द फर्स्ट टाइम आई एवर केम टू अ स्पिट डोप लाइक वैसा फंक्शन इवेंट तो तब से वो है तो अभी भी मतलब वही है यार मतलब हम लोग मैं बहुत ज़्यादा ऐसे मैं अपने घर पे रहता हूँ मैं गाने वाने अपने घर पे बनाता हूँ लोग मेरे घर आते हैं जैसा सीन है बट Raga is still day one. Raga is probably the only one in my life who calls me यश मतलब ऐसा सबकॉन्शियसली वो मेरे को यश बोलता है तो और मैं भी उसको मतलब ऐसा रवि बोलता हूँ ऐसा मतलब सबकॉन्शियसली बट मैं उसको ज़्यादा रागा बोलता हूँ मतलब एज इन दैट्स मोर यू नो लाइक दैट वो ऐसे यश ही बोलता है बट हाँ मतलब ही इज प्रॉब्ली दैट वन पर्सन यंगी नाम कब पड़ा काम ने करना चालू किया यंगी बहुत भाई 2015-16 में एंड देन वो यंगी ही हो गया काम नेम्ड यू हाँ मतलब यंगस्टर तो था लेकिन यंगी करना काम ने चालू किया है So what do you want to call yourself when you get older? Bad. Youngster. Okay. I mean, it kind of defeats the purpose if I start saying something else. But youngster. But nah, yeah, I mean, young thug is young thug, right? Yeah. He's fucking what? So I'm just messing. Yeah, I know. So बट वही हम लोग चिल करते हैं अभी मतलब वही है यार गेम खेलते हैं अभी भी स्टूडियो जाता हूँ मैं अगर ऑनकोर के घर मतलब ऐसा हो या ऑनकोर चिल कर सबका वैसे तो काम ही चल रहा होता है लेकिन कभी मतलब हम लोग मिलते भी अब वैसे ही है कि कभी अगर ऑनकोर फ्री है तो मैं वो खुद ही बोल देता है कि भाई क्या कर रहा है आजा मैं क्या कहते हैं ऐसा घर बैठा हुआ हूँ स्टूडियो में वेल रहा हूँ आजा या मैं कभी उसको हिट अप कर देता हूँ कि भाई बता दियो अगले इस हफ्ते में मैं थोड़ा फ्री हूँ तो लेट मी नो व्हेनेवर यू गाइस आर एट द स्टूडियो और व्हाटएवर काम से भी ऐसे ही सीन होता है फिर रागा पहले उस लाइक हिज गर्लफ्रेंड यूज्ड टू लिव अराउंड माय लाइक एरिया तो ही यूज्ड टू विजिट तो हम लोग मिल लेते थे अभी मतलब अभी भी वही है कि वो ऐसा आते जाते रहते हैं तो मी एंड रागा तो आल्सो द सेम मैनेजमेंट राइट तो हम लोग उस तरीके से भी काफी बार मिल लेते हैं कि अच्छा अरण्य कहाँ रखी है आदित्य है तो रागा कहाँ है यंगी कहाँ है मिल लेते हैं तो वो सीन चलता रहता है रागा के साथ मतलब ऐसा सीन है तो गेम वेम खेलते हैं मिलते हैं गाने वाने सुनते हैं सुनाते हैं एक दूसरे को क्योंकि इतना टाइम भी हो जाता है बीच में मिले हुए उस टाइम बीच में इतने गाने बन गए होते हैं सबके हम लोग मिलकर एक दूसरे को सुनाते भी हैं कि व्हाट वी हैव बीन अप टू उसी से आधी चीजें डिसाइफर हो जाती हैं कि ओ ऐसा फील कर रहा है क्या तो आजकल फिर oh what was this about you said this I don't have to chat with you just hear my song yeah it's that कि oh ये ऐसा what did you say ऐसा क्यों बोला तूने और फिर वहाँ से बात हाँ भाई क्या चल रहा है बता तो वही ये सब चीजें होती हैं तो that's what it is nice so you all still with each other don't have filters because industry में बहुत filters हैं हाँ यार क्योंकि हम लोग सब वही है ना मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग दोस्त पहले हैं तभी वो जो आप इनसिक्योरिटी वाली बात होती है कि इंडस्ट्री की माँ की मेरे को नहीं फर्क पड़ता क्योंकि मेरे लिए मतलब मैंने सेट सीन तो था ही नहीं कुछ दोस्त थे तो वो मकसद एक ही जैसा सोचते तो वही है कि हम लोग सबको एक जैसा सोच रहे हैं तब किसी को कुछ हो रहा है किसी का कुछ और हो रहा है किसी की लाइफ कहीं और जा रही है इट्स डिफरेंट पीपल एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट टाइम्स बट घूम फिर के हम लोग आके एक ही जगह पे कर तो वही चीजें रहे हैं जो हम लोग कर रहे हैं व्हिच मेक्स अस अस तो आई लाइक इट वेरी रेयर वेरी प्रेशियस या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट इन लाइफ कि ओके ठीक है और मतलब मेरे लिए तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंस्पायरिंग भी होती हैं मतलब कि ओ लाइक यू नो लाइक फॉर एग्जांपल सीधे मौत वेंट टू लंदन दे Glastonbury they saw like they saw Massive Attack they saw Run the Jewels they saw this that Killer Mike तो वो सब आके बताना कि वो यंगी तू सोच ऐसा हो गया लाइक हाँ भाई मतलब वो चीज़ लगता है कि भाई हाँ ठीक है मतलब तुमने एक्सपीरियंस किया तुम आके मेरे को शेयर कर रहे हो तो I'm living through you and we're all living through each other exactly मैं कहीं जाता हूँ तो ओ तेरा ये कैसा था how was this how was Rolling Loud how was this that तो 10 चीजें ओ भाई मैंने वेस्ट साइड गन देख लिया you should have been there motherfuckers why weren't you there ये सब चीजें होती रहती हैं तो मतलब ये सब मस्त है but I think that also speaks to the person you are and they are that you can maintain these friendships and relationships 100% it's very important it's very important relationships ऐसे बाकी तो यार वो तो बाकी इंडस्ट्री में तो रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं उस पे ही चलती हैं कि भाई तुम क्या ऑफर कर रहे हो एंड दैट्स हाउ इट इज एंड दैट्स हाउ आई थिंक दैट्स द नेम ऑफ द गेम अगर दोस्त नहीं है कोई तो अगर तुमको लग रहा है कि क्योंकि अब दोस्त जिनको मैं दोस्त बोल रहा हूँ मेरे दोस्त हैं क्योंकि वो दोस्त सीन बनने के पहले से हैं बट अगर तुम सोच रहे हो कि कोई तुम्हारा दोस्त है और कोई तुम्हारे लिए ये करेगा वो करेगा या ये तो नोबडी ओज यू एनीथिंग मेरे को एक बहुत बड़ा वैल्यू आप जो क्वेश्चन पूछे थे उसमें एक बार ये भी है कि कहीं तो किसी गिग के बाद somebody came to me and was like very वो कि oh यंगी and I was like and then I met them and then I went to Sumit Roy he's a friend he's also an artist he's a painter also he's a visual artist also he raps also he makes music तो
we were at some venue, I think Piano Man or some shit, and somebody came to me and was like, "Ki oh Youngie, oh," and then I met that person and I went to Sumit and I was like, "Ki bro, देखा वो अभी अब आके मेरे को मिल रहा है, वो पहले उसने ऐसा ऐसा करा था." He was like, he told me कि bro ऐसा ही है, you cannot hate him for doing that because तेरे को उसमें वैल्यू दिख रही है और वो अब जुड़ जाएगा अगर तेरे साथ तो जुड़ा रहेगा. अब पता नहीं वो कितना जुड़ने के उससे है, बट यू हैव टू टेक इट फ्रॉम दैट मैटर. अगर वो तेरे सामने आके वो बोल रहा है तो यू आर एट अ पोजीशन वेयर यू कमांड दैट, तो दैट्स गुड फॉर ऑन योर पार्ट, इट्स गुड. आई वाज लाइक हाँ भाई, मतलब आई कैन नॉट हेट समवन फॉर स्विचिंग अप ऑन मी फॉर द गुड. Yeah, you can't have the negativity anyway because it's just how it's मतलब if someone programmed. switches up कि ओ अच्छे से बुरा हो गया, then I can be like oh you switched up bro. But अगर तुम पहले मेरे से फक नहीं कर रहे तभी आके बोल रहे हो कि ऐसा ऐसा है जो भी है. If you don't have envy in your heart, even if you have envy in your heart, if you come to me with that वो I know that I'm commanding that respect from you कि वो तुम मेरे सामने नहीं बोल सकता मुझे. So I'm doing something good. You're doing something right. तो वही एंड दैट्स हाउ द इंडस्ट्री इज. कोई और इसका और उसका काउंटर पार्ट ये भी नहीं है कि कोई अगर तुमसे आके स्वीटली बात कर रहा है और वो ऐसे मेंटेन नहीं कर रहा है रिलेशन तो वो हेट करता है तुमको. They तुम just मिलोगे तुम have तो their अच्छे से stuff एक्ट करेंगे ही लोग, फिर yeah. चले जाएंगे अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएंगे तो फिर तुम उसको मतलब क्या ही है. तो आई डोंट सी इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आल्सो. Nice. आई सी इट फॉर व्हाट इट इज ऑन द फेस वैल्यू. इट्स एन इंडस्ट्री, इट्स एन ऐसा मोर ग्लैमराइज्ड ऑफिस स्पेस इफ आई मस्ट से. सीन अब बन गया है वैसा. कलीग्स हैं बहुत सारे लोग और रैपर्स हैं. फॉर द वर्ल्ड देयर आर रैपर्स बट फॉर अस देयर आर प्रोड्यूसर्स, देयर आर म्यूजिशियंस बट देयर आर कलीग्स. एंड नॉट नेसेसरली सबकी सबसे बने, नॉट नेसेसरली सबके वैल्यूज मैच हो, बट एट द एंड if we are working towards one goal, that is to make better music and to represent India and Indian hip hop, Hindustani hip hop on a scale for the world to see, it's great. Matlab, तो that's how it should be. It's an ecosystem. Everyone's got to just work together. No, that's a very healthy way of looking at it. Yeah, I mean, फिर insecurity भी नहीं रहेगी ना. Yeah, और बहुत लोग. I love this tree. So we're back. We are back to the lake. By the lake. You were saying there's a story here. सब कुछ आग लग गई थी. There was this spit dope that was going on. वो करके हम लोग निकल के. There was this friend of ours who used to live in one of these buildings. तो after that spit dope thing, like वो event खत्म हुआ and we were waiting for सीधे मौत to take some shots for their सीधे मौत anthem का video. तो we were just at that friend's place for a bit. We were waiting for the sun to go down क्योंकि उनको रात में शॉट लेना था कुछ. And right around the time when they were like okay, like let's go take shots, तो ये दो लोग सब लोग नीचे जाते हैं and they come up वापस and we're like कि तुम लोग गए नहीं. We're like भाई गए तो नहीं, नीचे आग लग रखी है. Like what the fuck, आग लग रखी है. तो लाइक हाँ नीचे पता नहीं कुछ तो सीन रखा है साइड में. वहाँ पे पहले एक एरिया पड़ता है मतलब व्हेन वी एंटर वहाँ पे 2-3 या बिहाइंड दिस वहाँ पे बहुत सारे. सो वो बहुत ऐसे भी लग रखा है ना कि 3-4 किचन्स बैक टू बैक हैं. तो अगर वो एक जगह कुछ होता है तो वो पकड़ लेती है आग. तो वी वर लाइक अच्छा नीचे नहीं जा सकते. फिर ऊपर गए हम लोग एंड टेरेस बंद था. फिर हमने कुछ कुछ करके टेरेस खोला. देन वी एंड दे वर लाइक गर्ल्स विद अस. एंड उस घर मतलब उस अपार्टमेंट की और भी औरतें थी नीचे से वो ऊपर आ गई थी. तो लड़के भी थे मतलब मेल पीपल वर आल्सो लाइक वर देयर. सो हम लोग अब ऊपर वहाँ छत पे देख रहे हैं कि लपटें कहीं से तो लपटें आ रही हैं कहीं तो जो भी है. देन वी जंप्ड फ्रॉम वन terrace to the other terrace, फिर other terrace, so we ended up somewhere on like the other side of this, basically imperfecto के पीछे we ended up. And jumping terraces. Yeah. And फिर हम नीचे उतरे. तब हमें जब हम नीचे उतर गए फाइनली जब रोड पे आ गए तब हमने पहला फायर ब्रिगेड देखा जाते हुए अंदर. लाइक ओके कुछ हुआ तो है. लाइक काफी वो था क्रेजी एक्साइटिंग टाइम्स. That's mad. Yeah. Lot of memories here. Yeah, a lot. Good and bad. Yeah. Amazing. So I remember we had exchanged some DMs. Yeah. कुछ 5-6 महीने पहले. Yeah. Where you were talking about, you were telling me you had some kind of a phase last year. You were in a funk for some reason. Yeah. What was that about, and how have you come out of it? I mean, I remember we were having that conversation about like A song. wallowing or you know having that defeatist mentality. Yes, that's. तो मतलब वो ऐसे defeatist mentality नहीं था, but I realized that कि when it comes to songs, it's very like it's supposed to make you grow. तो अब वो मेरा spot उस last year वो also that was the time when मतलब right after Mean I had done a lot of other stuff like Graveyard Shift आ गया. फिर उसके बाद USG भी आ गया. उल्टे सीधे गाने. उसके बाद और फीचर्स भी आ गए खोया सब ये वो जो भी है काफ़ी चीज़ें हो गई थी. तो मेरे को ये भी नहीं मतलब आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कि ओके नाउ व्हाट ऑल थिंग्स दैट आई नीड टू से
एंड क्या ऐसी चीजें जो मैं अब मैं क्या बोलूँ, ये सब तो बोल दिया उस वक्त, कि सब तो बोल दिया एल्बम में, अब क्या बोलूँ, अब करूँ क्या. एंड ऑल्सो राइट अराउंड द टाइम वेयर थिंग्स वर सपोज टू गो full throttle, तभी अब due to whatever reason, but like movement kind of disbanded, and like that was organic, I'm assuming. yeah, मतलब वो धीरे धीरे, अब मतलब मेरा tenure तो मेरा और पहले ही lapse हो गया था, but I extended that because right around that time that Mass Appeal thing happened, and then I was supposed to make my own album also, like ये सब, तो वो सब चीजें चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब वही था कि when things were supposed to go okay, now I'm ready for more, and वहाँ पे एकदम not only like you know when you're in that mentality कि okay, you need to go harder, and not only you don't go harder, वो और नेगेटिव में आ जाती है कि अब तो मैनेजमेंट भी नहीं, एंड देन you're like अब मेरे को म्यूजिकली भी नहीं पता कि मैं अभी करने क्या वाला, कैसे क्या कर रहा हूँ, जो भी है, तो हाउ एम आई गोइंग टू सर्वाइव इन दिस इकोसिस्टम बेसिकली. तो उस पॉइंट पे आई वाज लाइक ओके, बट देन वही है, म्यूजिक ही हेल्प करता है उससे निकलने में, तो आई वाज लाइक ओके फक इट, लेट्स मेक म्यूजिक, लेट्स सी, एक प्रोजेक्ट बना के देखते हैं क्या होता है, और वो वहाँ से चालू हुआ. तो आई फिगर आउट कि भाई यू आर ओनली गोइंग टू मूव फॉरवर्ड इफ यू कीप पुटिंग इन द वर्क रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर इज गोइंग ऑन अराउंड यू. तो और कुछ है ही नहीं, और कुछ है कंट्रोल, वही एग्जैक्टली कंट्रोल, कि तुम्हारे कंट्रोल में कुछ नहीं है. तो व्हेन यू लाइक गिव अप दैट पर्सपेक्टिव कि भाई नहीं, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, कि तुम्हारे कंट्रोल में काम करना, तो फिर वो डिफीटिस्ट मेंटालिटी कहीं ना कहीं, मतलब डिफीटिस्ट मेंटालिटी भी नहीं बोलूंगा मैं, ये बोलूंगा कि स्पाइरल. हाँ, मतलब एज अ ह्यूमन ब्रेन यू कैन गो इन डिफरेंट प्लेस, लाइक योर ब्रेन कैन लीड यू टू डिफरेंट प्लेसेस. वही है, एक बस जैसे आप खड़े रहते हो बस स्टैंड पर, आपको पता है कि आपको कौन सी बस में जाना है, आप रैंडमली किसी भी बस में नहीं चढ़ जाते, बट थॉट्स आर लाइक दोस बसेस. मैंने कहीं पढ़ा था कि यू हैव टू लेट नो कि कौन सी बस में बैठना है बेसिकली, नहीं तो और हाँ कब और कहाँ उतरना है. तो वही है, आई फिगर्ड दैट आउट, एंड मेकिंग म्यूजिक, सेइंग शिट जब अंदर से निकलता है कि ओके ये अंदर था, ये भी अंदर था, और तो लगता है कि हाँ भाई कुछ कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो फिर वो चीज़ अपने आप खत्म हो जाती है. वही बात कर रहे थे हम लोग कि उस मेंटालिटी में रहना सही नहीं है, खुद को कोसना या कुछ वैसे करना सही नहीं है. I like it. I loved it when you messaged, because it came off of something I had said in a video, and I was like, this is nice that we can like talk about these kind of things. Yeah, and just speak on a human level. Yeah. So in this whole like process now, you also saying it's easier to go into flow state and all of that, but is there still something like a flaw or a slightly slower growth spurt you're having which you wish you could get better at quicker, anything like that? I mean, a pain point that I'm like struggling with right now is kind of, मतलब वही है कि जितना मेरा इनपुट है उतना आउटपुट नहीं है, और वो कभी हो भी नहीं सकता. मैं हमेशा जितने गाने रिलीज कर सकता हूँ उससे ज्यादा ही बना के बैठा रहूंगा. दैट इज समथिंग दैट आई हैव अग्रीड, लाइक कि you made your peace with that. या कि हमेशा गाने ज्यादा ही बनेंगे जितने रिलीज हो रहे हैं उससे, और रिलीज होने में टाइम अभी लग रहा है, हो सकता है कुछ चीज चेंज हो जाए बाद में, बट दैट इज वन थिंग दैट आई नीड टू फिगर इट आउट फॉर माई सेल्फ, कि गाने निकलें, गाने पूरे उससे निकलें. और आई थिंक दैट विल हैपन व्हेन आई स्टार्ट रिलीजिंग आल्सो म्यूजिक, क्योंकि मैंने बहुत मतलब आफ्टर मीन एंड दैट ग्रेवयार्ड शिफ्ट वाला रन, आई हैव रिलीज म्यूजिक बट आई हैव नॉट बीन ऑन अ रन. सो एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अप. वही मैं लाइक कनेक्टिंग टू द लास्ट क्वेश्चन आल्सो, कि जब अभी उस पॉइंट पे हूँ मैं कि भाई उतने गाने बन गए हैं, मेरे को पता है कि काम की कमी नहीं है, मतलब मैंने अपॉर्चुनिटीज अपने लिए, अगर तुम एक गाने को एक अपॉर्चुनिटी मानो, तो मैंने अपने लिए 50 से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रखी, बना रखी है. लेकिन अब वही है कि उस चीज को निकालना कैसे है, वो चीज फिगर आउट कर रहे हैं. ऑफ कोर्स मैं अभी भी यूज्ड टू हो रहा हूँ इस पूरे पोस्ट 2024 इकोसिस्टम ऑफ इंटरनेट से. रील बनाना है, ये करना है, वो करना है, 10 चीजें हैं कि क्या कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं. हाउ डू आई पुट माई सेल्फ आउट देयर. आई विश आई वाज बोर्न विद दैट टैलेंट, जो अभी आजकल के बहुत सारे बच्चों में इनको पता है कि उनको अपने आप को इंटरनेट पे प्रेजेंट कैसे करना है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से देख रहे हैं वो चीज़. पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग एंड मेकिंग, या ब्रांड बिल्डिंग, दैट इज समथिंग दैट आई नीड टू वर्क ऑन, दैट आई एम वर्किंग ऑन. वो थोड़ा रिफ्लेक्ट करेगी व्हेन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट रोलिंग आउट. एंड वही है, मतलब ये सब चीज़ें हैं कि बस गाने निकालने ज़्यादा एफिशिएंटली और ज़्यादा कंसिस्टेंटली वो बैक टू बैक चले. So that's what I've been working on. Nice. Okay. In this whole journey, if there's one day that you can relive, what day would that be? In this whole musical journey of yours. Interesting question. ऐसे तो बहुत सारे दिन हैं, but I think Mean launch at Social was great because right here.
a lot of people no Saket Social okay. this was Hoska Social हाँ क्योंकि उस दिन बहुत सब लोग थे मेरे को मेरा मतलब मेरे बर्थडेज पे मेरे को नहीं फील होता है वैसा मेरे को ऐसा लग रहा था मेरा बर्थडे है उस दिन I can imagine क्योंकि लोग वैसे ही आ रखे थे तो that Everyone is showed up. yeah and more than like वो कि the energies were there for me and I could feel that and I felt very like वो कि okay है कुछ करा है मैंने कुछ हो रहा है लोग हैं यहाँ पे और मेरे को अभी भी काफी लोग ऐसे हैं जो काफी आर्टिस्ट भी ऐसे हैं जो लोग मेरे को बोलते हैं कि वो भाई वहाँ देखा था आपको पहली बार मैंने या वहाँ आए थे हम लोग तो अच्छा लगता है वो सब सीन आई थिंक वीकेंडर also is something that I would like to relive just I have that in my memory fond memory NH7 yeah because Jid first time I met like a ऐसा in that sense कि 2022 November 22 okay तो मतलब भाई कि ऐसा जिड को सुनते थे जिड देख लिया जिड के स्टेज पे सेम स्टेज पे मैं जिड के साथ हूँ मतलब उसके एक एक्ट पहले कृष्णा है उसके एक एक्ट पहले मैं हूँ और कृष्णा और पीछे लोग भी हैं सब लोग हैं पूरा सीन है एंड आई मेट जिड ऑल्सो I was fortunate enough to meet him like share a handshake with him and have a picture click with him and whatever तो काफी ऐसा it's something else to be living the days you dreamt of na yeah exactly like that's the whole exactly joy 100%. So same thing if you can revisit a moment in this whole journey which day would that be where you would do something differently nothing okay because हाँ क्योंकि पता नहीं मैं अभी यहाँ हूँ no regret मैं यहाँ पे हूँ सही हूँ मस्त हूँ पता नहीं कैसे होता कुछ और होता तो पता नहीं क्या होता पता नहीं किस कहाँ होता या yeah and if you could write like a short note to your younger self maybe the younger Youngie who started music what would that note say I would say बहन चो तेरे को पता भी नहीं है क्या होने वाला है अभी मतलब I would just say that bro you have no fucking clue कि क्या होने वाला है जो तू सोच रहा है because you know what I come from a place where like legit मैं मजाक भी नहीं कर रहा at this point I don't know लोग उस पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ पे सब कुछ इतना फॉर ग्रांटेड ही है सबके लिए बट मेरे लिए बिकॉज आई ऑलवेज रिमेंबर कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ एंड कैसे बना है मतलब व्हाट वर द ऑड्स ब्रो कि एक गोरखपुर में बैठा हुआ लड़का जो जिसके घर में कोई म्यूजिक से रिलेटेड नहीं है कोई फिल्म कहीं से कोई कुछ रिलेटेड ही नहीं है व्हाट वर द ऑड्स कि वो हिप हॉप कर रहा हो और दिल्ली में लोग जान रहे हो उसको मतलब या आई मीन अगर मैं उस तरीके से देखूं उस चीज को अगर मैं कहाँ था तो आई वुड से दैट यू नो लाइक आई फकिंग मतलब आई वुड जस्ट भाई तभी मैं कह रहा था कि कहाँ से कश्मीर कोलैब लाइक एंड व्हाई दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी बहुत लोगों के लिए बहुत मतलब लोगों को पता भी नहीं है मेरे लिए वो इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उनके गाने मैंने कॉलेज में सुने हैं मतलब लिटरली मैं क्योंकि हम लोग शीटें ट्रेस कर रहे थे टोपो कर रहे होते थे और उस वक्त ईडीएम बज रहा था और लाइका G6 बज रहा होता था और उनके और भी जो क्या कहते हैं ऐसे टुमारोलैंड वाले कट्स थे वो सब बज रहे होते थे तो कहाँ से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई मैंने कुछ हुआ भी नहीं ऐसा मैंने आयुष्मान को टेक्स्ट किया कि ब्रो पता नहीं अभी क्या चल रहा है बट अगर कभी अगली बार या कुछ होगा तो मेरे को बताना ही जस्ट टेक्स्टेड मी कि भाई तू 2 दिन में आ सकता है बॉम्बे आई लाइक भाई आप बताओ तो मैं आ जाऊंगा तो वही है कि वो सब चीजें दैट इज एंड it's not just that it's the learning that I got from that entire experience कि भाई एक तो अपने उस पे कि भाई मैं कर सकता हूँ मेरे को अगर तुम उठा के बोल दो तब से तो मेरा उस कॉन्फिडेंस मतलब although I have done like फैजान when I was in movement फैजान says no says को तो पता ही है कि अगर कुछ प्रोजेक्ट ऐसा आएगा टर्न अराउंड टाइम कम से कम भी है तो भी यंगी कर देगा वो चीज मतलब दैट इज तो या आई मीन वो चीज तो मतलब सबको पता है इवन करंट मैनेजमेंट अरण्य का एंड दे नो कि भाई कुछ भी ऐसा होगा यंगी कर देगा मतलब क्वालिटी में और वो सब चीजों में कोई सीन नहीं है ही विल डू इट तो आई लाइक ओके दिस ब्रांड वर्क एंड स्टफ तो आई कैन डू लेकिन व्हेन इट कम्स टू पुटिंग मी इन अ रूम I know I can kill it. Now I know I can kill it. Like that is one thing that I know कि कुछ मेरे को बता दोगे तो ऐसा कि A to B बता दोगे कि ये है ये यहाँ लेके जाना है स्टोरी है ये करना है मैं कर दूंगा वो. I also did the character study tracks for the what was that Rowdy Records, what Khalwali Records. Okay. The show in which Prabdeep is there, EPR is there. Okay. That show किस पे है वो जियो पे पता नहीं कहाँ पे है वो हाँ जियो पे तो ऑल्दो वो मैंने जब करा उसके 2-3 साल बाद आया वो लेकिन वो सब भी कर रखा है तो बट हाँ वही कश्मीर वाला क्योंकि सीरियस शिट इट वाज कश्मीर्स एल्बम
तो मी डूइंग दैट वाज लाइक क्रेजी कि भाई कर सकता हूँ मैं। Yeah. तो वो सब सीन है एंड देन ऑल दैट शिट मेक्स यू ग्रो एज एन आर्टिस्ट। तो वही है, मतलब वापस जाके मैं अपने यंगर सेल्फ को वही बोलूंगा कि भाई यू डोंट नो व्हाट्स देयर इन स्टोर, बिकॉज जहाँ जिस पॉइंट इन टाइम से मैं तेरे को ये बोल रहा हूँ, इवन आई डोंट नो व्हाट इज देयर इन स्टोर, बट आई एम एट दैट पॉइंट वेयर आई नो कि इतना हो गया है तो बहुत कुछ हो गया which और भी कुछ हो ही जाए मतलब। And you're here on your merit, you know. Yeah, no, you exactly. didn't, like, Merit, गानों के merit. Yeah, no काम के shortcuts, merit. no, like it. So through music, there's always something, like you were talking legacy before. Yeah. Legacy aspects of you that should be remembered. Yeah. I'm bringing it back to that point and asking you if you want to define your purpose as an artist. Yeah. ये है मेरा purpose. क्या वो thoughts आते हैं? क्या उसके बारे में सोचा है? Do you feel you know what that is, the purpose of you doing music, looking from a macro level? Purpose, कि I feel मैं कैसे लैंड हुआ इस वर्ल्ड में? हाँ और मतलब क्यों? वही कि एक तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि भाई तुम म्यूजिक लाइक अपने मेरे को मेरी फैमिली के बारे में, अब मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मेरी फैमिली कहाँ से आ रही है, वो सब बताना है, रिप्रेजेंट करना है। माई मदर, द स्टोरी ऑफ माई फैमिली, द स्टोरीज दैट आई हैव हर्ड इन माई फैमिली, वो बताना है मेरे को। उसके बाद जो मेरे आसपास लोग हैं जो भी है, वो वही मैं जो कह रहा था कि मेरे से बेनिफिट कर ले। और आई सबसे पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम ना, तो सबसे पहले मैं अपने घर पे प्रोवाइड करना, मतलब उस पॉइंट पे आऊँ कि यू नो टू ब्रेक दैट वो, बिकॉज अभी सब कुछ कर आके हम लोग के पास गोरखपुर में एक घर है, गोरखपुर में अभी हम लोगों ने डच करके एक रेस्टोरेंट बिजनेस चालू करा है। Nice. तो ये सब चीज़ें हुई हैं चालू, बट अभी तक गोरखपुर तक ही है वो। तो मेरे को थोड़ा सा वो भी है कि भाई माई फादर needs to experience better. The people around me need to experience better. They need to have whatever they need, whatever they think that they want. Yeah. वो सब चीज़ें तो हैं. That is my purpose from the personal like perspective of existing as Yash Chandra in my family and around my people. Yeah. अब वैसे आप पूछोगे कि पर्पस क्या है, तो मेरे को ऐसा लगता है भाई होप है मेरे पास मेरा, कि आई एम द लिविंग एग्जांपल ऑफ व्हाट की कुछ भी हो सकता है, like nothing, your surroundings don't define you and your setbacks don't define you. It's what you do after your setbacks that define you and what you do with your surroundings that define you. Surroundings तो तुम्हारे कुछ भी हो सकते हैं, मतलब मेरे को आइडियली इंजीनियरिंग करके आर्किटेक्चर करके जॉब करनी करता मैं अगर वैसा होता तो लाइफ, जो कि मैंने बीच में कहीं छोड़ दिया। लेकिन अब वो पता नहीं आगे जाके मैं क्या करूं, जो भी करूं, क्योंकि मेरा थोड़ा वो है कि आई थिंक आफ्टर सम टाइम मैं और 10 चीज़ों में हाथ डालूंगा शायद से, मतलब आई एम फकिंग फॉन्ड ऑफ food and food industry and food business, so I might, like I already have a restaurant, but I might delve deeper into that or whatever it is, and why not? Yeah, exactly, but music has kind of given me and will be the core of it. Why am I able to, you know, sustain, like get into a food business if I do at all? I'm just giving an example. Yeah. Because of music, because I chose to do music, and that music has brought me to a point where people know my name. So if I start something else that benefits from that effort that I've put in music, बट वही है कि वो होप है कि भाई अगर गोरखपुर से उठ के 2012-13 में एक लड़का रैप कर सकता है और वहाँ के अब लड़कों को एक सीन मिल रहा है आफ्टर सो लॉन्ग एंड दे कैन सी कि ओके देयर इज सम फ्यूचर टू इट, एंड दिल्ली जाके मतलब स्लॉग करा है जल्दी नहीं, तो नहीं बैठा मैं गोरखपुर में अपने कमरे में और वहाँ पे नहीं गाने बना, मैं दिल्ली आ गया। मैं यहाँ के लोगों के एजुकेट, मतलब अभी भी बहुत छोटी है ब्रो बबल, मतलब आज से 5 साल बाद जब लोग उस तरीके से मेरे को जानेंगे कि ओ फक, यू नो, वो कहते हैं फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड फटना, जब, और वो ज़्यादा टाइम नहीं है अभी उसमें, मतलब जब बाय द टाइम ऑल इज सेड एंड डन, द म्यूजिक दैट आई एम सिटिंग ऑन रिलीजेस, एवरीथिंग इज प्रोबब्ली गोइंग टू चेंज फॉर द बेटर, एंड एट दैट टाइम पीपल, अभी भी है वो चीज़, बट और सेट इन स्टोन हो जाएगी कि हाँ भाई, मतलब गोरखपुर हो चाहे कोई भी XYZ छोटा शहर हो, कुछ भी हो, अगर तुम कर रहे हो तो अब तो बहुत ईजी है करना, मतलब इफ़ यू हैव द राइट मेंटालिटी एंड इफ़ यू हैव योर, क्या कहते हैं उसको, ड्राइव, इफ़ यू हैव द राइट ड्राइव टुवर्ड्स थिंग्स, तो बस वही है मेरे लिए कि अगर मेरे म्यूज़िक देख के और वो देख के लोग को उतना हो जाए कि भाई हाँ ठीक है, ये कर लिया तो हम भी कर लेंगे, या अच्छा लगता है सुन के कि भाई कोई
वो बातें कह रहा है जो हम फील करते हैं। और अकेला नहीं हूँ मैं लाइफ में, अगर यंगी ऐसा बोल रहा है, he is feeling that shit, I am also feeling that shit. Yeah. There is someone else who feels like that. That possibly means there are more people who feel like that. Yeah. तो वही है, मतलब that's where I feel that my purpose is right now. That's what I feel right now in my life. Yeah. No, you've already given that hope to so many people who say those things to you, and you've helped create a scene for your city. You've given back to the land you I'm still were doing raised that. in. Yeah, अभी तो it's too early. I mean, Delhi, you can say कि दिल्ली में जो सीखा मैंने, अब दिल्ली में वापस वो चीज़ I've given back in different ways. Yeah. But अब वो चीज़ मेरे को like I'm trying to do that with Gorakhpur also. Like उधर कर रहे हैं लोग. See, that's what it is. Even like I feel that it's a loop, like it's a pattern. कि कोड वगैरह जब आए मेरे को, जब बात कर रहे थे हम लोग कि क्या करना है, they started doing something. And then मैं हो गया, और भी लोग हो गए, जो भी लोग हैं, रागा है, जो भी और भी लोग हैं, धीरे धीरे people joined in when they understood कि okay there is something going on in the sense कि effort कर रहा है कोई, और करते हैं effort, साथ में मिलके effort करते हैं। तो अभी जब मेरे को पता ही नहीं है कि गोरखपुर में है कौन, रैप कर कौन रहा है, आधे लोग गोरखपुर के ग्रेटर नोएडा रखे हैं और ग्रेटर नोएडा में सीन कर रहे हैं, और वो ग्रेटर नोएडा साइफर है, मेरे को इतना शायद फर्क ना पड़े कि क्योंकि साइफर्स तो हर जगह हो रहे हैं, तो मैं पॉसिबली, लेकिन हाँ मतलब मेरे को दिखा कि भाई गोरखपुर में साइफर्स हो रहे हैं, कौन कर रहा है। तो अभी मैं गया तो मैंने फिर मिला, मैं लॉन्डो से, कहते तुम लोग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जो भी है। तो अब धीरे धीरे वहाँ के लोगों को फिर मैं उस पॉइंट पे लाना चाहता हूँ कि मे बी यू नो गोरखपुर की जनता को, जिसको फर्क नहीं पड़ता कि दिल्ली में क्या रैप चल रहा है, जिसको फर्क नहीं पड़ता कि बम्बई में क्या रैप चल रहा है, उनको उस लेवल पे मेरे को आई सी कि वो एक कल्ट दिल्ली गोरखपुर का अपना रहे। कि उनको पता रहे कि गोरखपुर के ये लौंडे रैप कर रहे हैं और ये हमारे सुपरस्टार्स हैं बेसिकली, who are representing us, the people in, and that can also happen now because वो आज से 5 साल पहले नहीं हो सकता था, क्योंकि वो वाली जनता इतना हिप हॉप और उससे कनेक्टेड नहीं थी। अब जो बच्चे हैं उनको थोड़ा बहुत पता है कि क्या चल रहा है। मतलब मेरे अभी चाचू का बेटा का एक दोस्त है, उसने पता नहीं किसने क्या सुना है, लेकिन उसने बोला हर्षित को कि यंगस्टर तेरा भाई है, लाइक तो मेरे को ऑटोग्राफ चाहिए या जो भी है। तो वो मेरे को आके, वो मेरे को हर्षित बता भी नहीं रहा था कि क्यों चाहिए, लाइक कि मेरे को इस पे साइन कर दो, पेपर ला के कहते साइन कर दो इस पे। मैंने कहा करेगा क्या इसका, लाइक वो बता ही नहीं रहा था कि मेरा दोस्त मांग रहा है, पता नहीं क्यों शर्म खा रहा था। लेकिन देन ही टोल्ड मी, चाची टोल्ड मी कि ऐसा ऐसा सीन है, लाइक ओके सही है। तो वही है, पता नहीं कहाँ से कौन सुन रहा है, अगर उसको अच्छा लग रहा है सुन के, अगर चाहे मेरा कोई लव सॉन्ग है, चाहे मेरा कोई ऐसा सॉन्ग है जिसमें मैं कुछ बोल रहा हूँ, चाहे मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ और उसको लगे कि हाँ भाई मतलब ये तो मॉरल्स मेरे भी लाई करते हैं, तो आई शुड आल्सो फील कॉन्फिडेंट बिकॉज़ दिस ही सेड इट। तो वो भी सही है, वो भी एक I like it. It's an equal balance of I'm doing the music because it gives me something, but I'm also focused on giving back. So yeah, it's a two-way street, na. It's got to be, yeah. You got to close. You got to be two-way street. You can't just take from it. You got to give as well, right? Exactly. And I think you and everyone else from the scene from day one, everyone we've talked about in this in this episode, I think all of you are doing that in your own. Yeah, I'm glad ways. Because अभी वही ना जो सेज की बात कर रहे थे अपन, कि आई थिंक वो कहीं ना कहीं वही है कि अभी ड्यू टू हिप हॉप बिकमिंग और वॉट एवर, मतलब अभी तो आई वुड से हिप हॉप नहीं है इंडिया में, हिप हॉप बहुत कम, एक बहुत छोटे नीश लेवल पे है अभी भी। रैप म्यूजिक फट गया है, रैप फट गया है, रैप कल्चर हो गया है कि वो लोग रैप करते हैं, बट व्हाट इज हिप हॉप? इफ यू आस्क समबडी व्हाट इज हिप हॉप, समबडी वुड से इट्स म्यूजिक, समबडी, बट लोगों को नहीं पता है कि हिप हॉप एक कल्चर है एट इट्स कोर, और वो आया कहाँ से है, जो भी है। बहुत सारे रैपर्स ऐसे हैं जो अभी भी, और मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है गलत है, लेकिन बहुत सारे रैपर्स ऐसे हैं जो डिवाइन सुन के स्टार्ट किया रैप करना, या इवन फॉर दैट मैटर मेरे को बोलते हैं लोग सीधे मौत देख के स्टार्ट किया है, मेरे को देख के स्टार्ट किया लोगों ने, राह को देख के स्टार्ट किया लोगों ने रैप करना। मेरे को कभी आके बोलते हैं कि भाई मैं उसको कि भाई मैं रैप करता हूँ, जो भी मैं पूछता हूँ कि एक तो हो रखा है काफ़ी बारी, मैं पूछता हूँ कि तू क्या सुनता है, कहाँ से चालू किया तुमने रैप करना, आप लोगों को देख के चालू, तो मेरे को देख के चालू कर, ठीक है कूल, बट एक्सप्लोर, इफ यू आर एन आर्टिस्ट स्पेशली, गो डीपर इनटू हम लोग क्यों कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, तब तो समझ में आएगा ना कि कहाँ, और make it your own. Yeah, making it your own, exactly, making it your own, and making it your own will arrive after you understood how people have made it their own. Yeah. You study that, case studies, कि कौन किसने क्या साउंड को कैसे ओन करा और कैसे ग्रो किया वहाँ से, किस स्टोरी को कैसे ओन करा, किसकी क्या स्टोरी है, एंड it's like the tree. Bringing it, तभी मैं यहाँ पे रुक गया था कि ये बहुत सही स्पॉट है, खुला भी हुआ है, let the branches grow through other people. Yeah. तो
वो है एंड इतने सारे लोग हैं ना अभी, मतलब इतना सब कुछ है कल्चर, मतलब ऐसा रैप म्यूजिक का कल्चर और ये सब वो सब इतना ज्यादा वो हो गया है कि वो मैच हमेशा वही रहेगी कि देयर विल बी मोर पीपल टेकिंग फ्रॉम इट देन गिविंग बैक टू इट. और आई फील उसकी फ्रस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं वो वही है और सबका वही है फ्रस्ट्रेशन, एंड दैट्स व्हाट इट इज काइंड ऑफ अ डेफिसिट टू द इंडस्ट्री और द सीन. बट इट्स अ नेचुरल प्रोग्रेशन कि जब कोई चीज उतनी बड़ी हो जाएगी तो उससे लेने वाले ज्यादा होंगे देन देने वाले. मतलब वही है ना, पेड़ है, इतने सारे पेड़ है, सांस तो सब लोग ले रहे हैं बट प्लांट कितने लोग कर रहे हैं? कम लोग कर रहे हैं. जितने लोग सांस ले रहे हैं वो ज्यादा ही हैं. तो इट्स जस्ट दैट. Also, I keep looking at this tree. The branches get thinner as they grow. Yeah, I mean it's all in the nature. It's all patterns, man. Poetic. I like the way you क्या कहते हैं articulated that right in front of you, like Love right it. in front of you. Yeah, that is what it is. जैसे जैसे बढ़ता रहता है, the branches get thinner. Thinner. Thank you so much for this episode. Glad to I think be अभी here. sunset हो गया है. Yeah. We should wrap up. अभी कुछ हम दिखेगा जाएंगे नहीं. कुछ खाने वाने. है ना? राज को बुला लेते हैं. He lives here. Oh yeah, he lives call around. him. Yeah. So Yeah. Mr. Jones, who started this whole thing Yeah. of podcasting in this scene, shout Yeah. out. On that note, thank you. Yeah. Thank you How so do much we for do being this? here. How do we do the? What? This? Can you teach me some? That's it. Okay. Peace out. Peace out. Live long and prosper. Yeah. What's up, bro? All good dog. In Humayun's tomb, नहीं tomb नहीं है sorry. Humayunpur sorry. Humayun's tomb बोल दिया मैं. Humayun's tomb. Humayun's tomb. अच्छा Humayun's tomb. Nice, yaar. You have not been to this area before. नहीं, first time. Humayun. First time. Fashion district भी है. Gay fashion. Why are you hiding? Everything is Korean here, and these gentlemen are making food. It's a very cultured destination. उनका लाफिंग और उनका मुंह मेरा फेवरेट है दिल्ली में. स्पाइसी है बट भाई स्पाइसी नहीं है. Thank you. ये देखो, ये ले तेरी कैफीन. ये कलर चेंज करते हैं जैसे मेरे दोस्त करते हैं. बार. ये ले तेरी कैफीन. Sip, guys. Cheers. 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 एल